Now, good morning to one and all present here. It is my pleasure to become a moderator of this program. I am Neha Sharma. On behalf of Doon International family, I would like to extend a warm welcome to all of you. We appreciate you taking off time of your busy schedule to join us today. As you know that board exams are going to be over for the board classes, so our school, Doon International, has organized this educational program for all of you. As we know that career guidance is comprehensive development program and designed to assist individual in making and implementing informed educational and occupation careers. As we are gathered here to have glimpse for the future professions of our proud Doonians by respected principal sir and our expert scholars as specially invited on this occasion. Now I would like to request Principal Sir to come on the stage and say a few words to respected parents and students. Thank you. I warmly welcome you all to this seminar that has been specially organized for the future guidance of our beloved students. I warmly welcome you all to this seminar that has been specially organized for the future guidance of our beloved students. Normally, students remain confused about their future due to the lack of guidance. So, to provide some valuable tips to them regarding the choice of academic streams after 10th class and the success futures. After class 12, we have cordially invited our respected scholars and academic experts on the prominent occasion as Hardev Singh, educationist, social worker. Welcome our chairman sir, Rajesh sir. Please give a big hand. Hardev Singh, educationist, social worker. Dr. Kawaljit Kaur Dhillon, health and career counselor. Retired Subedar Hukam Singh Chauhan, social worker and motivational speaker. Govind Singh Bhatia, social worker and motivational speaker. Here I, under the able guidance of our respected members of management and kind cooperation of my staff members, always try to emphasize on the quality education, discipline and good etiquettes to our students. These are basic qualities that hinge on moral and confidence of the students to perform them at the higher level in their career. In the last couple of academic sessions, our school has achieved many landmarks in the field and performed extremely well academically. In sports, also our kabaddi and volleyball streams. We regularly conduct yoga and karate classes as an integrating part of curricular and school time. We leave no stone unturned to provide every assistance to our lovely students so that they could become ideal citizens, effective professionals and good human beings. Now I would like to invite our esteemed scholars and experts to please Mr. Hardev Singh come on stage and guide our students along with their parents. Sir, please come. Thank you, sir. सबसे पहले धन्यवाद प्रिंसिपल सर का, यहाँ की मैनेजमेंट का, जिन्होंने हमें मौका दिया कैरियर काउंसलिंग के ऊपर डिस्कशन करने का। सभी छात्रों को जैसा कि पता है कि आज यहाँ हम सेमिनार जो रखा गया है वह कैरियर के लिए है।
अक्सर क्या होता है कि हमने 10th के बाद क्या करना है, +2 के बाद क्या करना है, कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहती है। और ज़्यादातर क्या होता है, देखा देखी। अगर मेरे एक फ्रेंड ने बायो में एडमिशन ले लिया है तो मैं भी बायो में, तीसरा दूसरे गांव से बच्चा है वो भी बायो में, किसी ने कॉमर्स में ले लिया वो भी कॉमर्स में, तो देखा देखी ज़्यादा होता है। और हमें ज़रूरत किसकी रहती है, हमें एक रहती है काउंसलिंग की ज़रूरत रहती है। वैसे यह काउंसलिंग पर्सनल तौर पर पेरेंट्स के साथ बैठकर होनी चाहिए, लेकिन स्कूल की मैनेजमेंट का हम भी शुक्रिया अदा करते हैं, सभी स्टूडेंट्स को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए यह काउंसलिंग सेमिनार रखा गया है आज पर। तो इस मौके पर मेरे साथ स्टेज पर जो मौजूद हैं, पहले हैं डॉक्टर कमलदीप कौर, जो डॉक्टर हैं, फोरेंसिक लैब में जॉब कर चुके हैं, आज राइटर भी हैं ये एक, और एज ए डॉक्टर सिविल हॉस्पिटल जगाधरी में अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं। इनके बाद मौजूद हैं गोविंद सिंह भाटिया जी, सोशल वर्कर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, हरियाणा अवॉर्डेड हैं और किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, जितनी तारीफ़ की जाए इतनी कम है। इनके बाद मौजूद हैं हुक्मचंद चौहान जी, रिटायर्ड सूबेदार जी हैं और बहु प्रतिभा के धनी हैं, और मैं लगभग इनके साथ 8 से 10 साल से हूँ। जितने सेमिनार किए गए हैं, जितने मोटिवेशनल सेमिनार किए गए हैं, मतलब इतने अच्छे रहते हैं कि अच्छे ज़्यादा लोग मोटिवेट होकर निकलते हैं। आज का जो सेमिनार है मेन रखा गया है अपनी काउंसलिंग के ऊपर। पहले मैं डॉक्टर कमलदीप कौर पहले स्टेज संभालेंगे और आपके लिए एक मेडिकल से रिलेटेड ज़्यादातर बातचीत की जाएगी कि उसका फ्यूचर क्या है, उसकी स्कोप क्या है, आगे किस काम आना है। उसके बाद भाटिया सर, फिर हुक्मचंद चौहान जी, लास्ट में मैं आपसे रूबरू हूँगा आपकी क्वेरी को लेकर। और मेरे से पहले जो भी वक्ता यहाँ आएंगे, मैं उम्मीद रखूँगा कि सभी स्टूडेंट्स या उनके जो पेरेंट्स बैठे हैं इसमें से क्वेश्चन बना के रखें, ताकि वो बाद में क्लियर आपको 10 से 15 मिनट या आधा घंटा हम आपके साथ बातचीत करेंगे। वो सेमिनार नहीं होगा, वो लास्ट में होगा, और उम्मीद करूँ कि आपके यहाँ से क्वेरी निकल कर आएंगे। तो मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर कमलदीप को आएँ और सेमिनार की स्टार्टिंग करें। तो क्लैपिंग करेंगे। सही नहीं है। Good morning to one and all. So, first of all, I would like to thank the chairperson, principal sir and the management जिन्होंने हमें ये अवसर दिया और ये इनिशिएटिव लिया कि इस टाइम पर जो आपका बहुत क्रूशियल स्टेज है, इसके ऊपर उन्होंने हमें ये मौका दिया है कि हम आपको काउंसिल कर सकें। अगर आप कहीं पर भी जाते हो तो आपको जो काउंसलिंग की जाती है उसके लिए चार्जेस भी लिए जाते हैं, राइट। और बहुत सारी जगहें ऐसी है जहाँ पर आपको काउंसलिंग मिलती ही नहीं, राइट। हमारे पास कितने बच्चे ऐसे हैं जो मेडिकल में आ चुके हैं और मेडिकल लिया है? कैन यू रेज योर हैंड्स प्लीज? हाउ मेनी? मेडिकल वाले हाथ खड़ा करो। +1 +2 सबने करा? ओके, कम है। कॉमर्स में कितने हैं? ओके, नॉन मेडिकल, राइट, एंड द अदर फील्ड आर्ट्स वगैरह में? सो मैनी, राइट, ओके। सो सबसे पहले अगर मैंने शुरुआत करनी है, आई विल बी गिविंग यू सर्टन आइडियाज़ कि आप किस किस चीज़ से शुरुआत कर सकते हो, कौन कौन सी आपकी जर्नी के लेवल रहते हैं। तो जितने पेरेंट्स यहाँ पे आए हैं उनके लिए भी मैं थोड़ा सा ओपन अप करूँगी यही फील्ड कि आप आगे क्या क्या कर सकते हैं, राइट। सबसे पहले जितने भी बच्चों ने मेडिकल के लिए, मैं ज़्यादातर फोकस मेडिकल पे रखूँगी बिकॉज मेरा जो कैरियर है वो ज़्यादा मेडिकल बैकग्राउंड रहा है। तो आप ये बताइए कि अगर आप मेडिसिन लेते हैं यानी कि मेडिकल में लेते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? क्यों लिया आपने मेडिकल? कोई बताएगा क्या आया था दिमाग में? मेडिकल वाले डॉक्टर बनेंगे, राइट, यही आया था।
सबके मन में यही आया होगा। ओके, तो आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि डॉक्टर के अलावा भी आपके पास बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस हैं। क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, अगर डॉक्टर, अच्छी बात है अगर आप डॉक्टर के लिए एस्पायर कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि डॉक्टर बने, आपको सबसे पहले उसके लिए एग्ज़ाम देना पड़ता है, वो है नीट एग्ज़ाम। उसके अकॉर्डिंगली जो आपके रैंक्स होते हैं, रैंक्स के अकॉर्डिंगली आपको स्ट्रीम्स मिलते हैं। अगर आप क्वालिफाई करते हैं MBBS के लिए तो वो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज इट विल ओपन अप गेट्स फॉर योर डॉक्टर लाइन। ठीक है, डॉक्टर कैसे बनेंगे आप, जो भी आपका पहले तो बेसिक स्टडीज़ होती हैं उसमें, उसके बाद आपकी जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन में जो आपके पास आएंगे वो स्पेशलाइजेशंस आ जाते हैं, राइट। तो सबसे पहले 12th के बाद जो आपका सबसे पहले चीज़ आपने करनी है वो है नीट का एग्ज़ाम देना। ठीक है, उसके बाद आपने चेक करना है कि आपका रैंक कौन सा है। जैसे भी आप स्कोर करते हैं, अगर अच्छा स्कोर नहीं आता तो भी आप डिसहार्टेंड फील नहीं करेंगे, बिकॉज मेडिकल फील्ड इतना बड़ा है, इतना बड़ा सेक्टर है कि आपके पास इतने ऑप्शंस हैं कि आप कोई भी चूज़ करो तो भी आप बेरोजगार नहीं रहेंगे। ठीक है, तो मेडिकल लाइन में सबसे पहला MBBS चॉइसेस रहते हैं। उसके बाद आपके पास BAMS है। BAMS किस लिए है, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, बहुत जगह पे इनका डिमांड रहता है। ठीक है, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जो हैं वो कहाँ पर लग सकते हैं, उसके लिए भी हम आपको बताएंगे कि आपके पास मेडिसिन के साथ साथ जो मेडिकल MBBS वाले हैं वो हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स लग सकते हैं। MD करने के बाद वो गवर्नमेंट सेक्टर से भी ज्वाइन आउट कर सकते हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट्स जो हैं वो अलग अलग प्रोग्राम्स को रन करते हैं, उनमें भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। BAMS डॉक्टर्स जो हैं उनका एज ए लेक्चरर भी रहता है। ठीक है, एक स्कोप रहेगा लेक्चरर के रूप में, एक रहेगा वो खुद का जॉब कर सकते हैं, यानी कि किसी भी हॉस्पिटल प्राइवेट में या गवर्नमेंट सेक्टर में एग्जाम्स क्लियर करके वो उनमें ज्वाइनिंग कर सकते हैं, राइट। अनदर वो खुद की प्राइवेट प्रैक्टिसेस भी कर सकते हैं। ठीक है, रिसर्च, साइंस स्टूडेंट्स के लिए रिसर्च इज ऑलवेज ओपन। ठीक है, रिसर्च कहीं से भी आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो रिसर्च की। अगर आप BAMS में हो तब भी आप CCIM वाले आपके पास बैठे होते हैं, आयुष विभाग जो है उसमें आप रिसर्च के लिए एग्जाम्स दे सकते हो और वहाँ पे आप ज्वाइनिंग कर सकते हो। MBBS के लिए भी अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है, डॉक्टरशिप करने के बाद आप कहीं पर भी रिसर्च फेलोशिप में ज्वाइनिंग कर सकते हो, राइट। अनदर उसके बाद अगर आता है हमारे पास आते हैं BHMS, यानी कि आप एज ए डॉक्टर होम्योपैथिक मेडिसिन में भी ज्वाइन इन कर सकते हो। आपके पास एक मेडिसिन के लिए कोर्स है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन को भी परस्यू कर सकते हैं। आफ्टर दैट आजकल जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो है BPT। किसी को पता है BPT क्या है? किसी को पता है? व्हाट इज BPT? वेरी गुड, बैचलर इन फिजियोथेरेपी। वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आज के जो ज़माने में जो लोग हैं वो ये सोचते हैं कि हम मेडिसिन ना लें ज़्यादा और नेचुरली अपने आप को क्योर करें। हर बंदा आजकल अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुका है, तो वो फिजिकल एक्सरसाइजेज या फिजियोथेरेपी भी परस्यू कर सकते हैं, ताकि आप एक मेडिकल सेक्टर में आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा है इसमें भी। आगे समझ? एनी क्वेश्चन यहाँ पर? ओके, नेक्स्ट थिंग जो हमारे पास है, BPT के बाद BAMS मैंने कवर अप कर लिया, होम्योपैथिक मेडिसिन मैंने कवर अप कर लिया। अब हमारे पास आता है बैचलर्स इन वेटरनरी साइंसेस। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको प्यार होता है एनिमल से, एनिमल लवर्स भी होते हैं, उनको अगर डॉक्टर बनना है वो वेटरनरी डॉक्टर भी बन सकते हैं। ये था डॉक्टर लाइन का फील्ड। अगर आपको इसके बारे में और पता करना हो तो आप मुझसे बाद में भी पूछ सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट, क्योंकि हमारे पास जो साइंस के जो सेक्टर्स हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि अगर बारी बारी सबको डिटेल्स में डिस्कस करने लगे तो हमारा जो टाइम है वो बहुत कम है। ठीक है, तो ये थे मेडिकल सेक्टर्स के। इसके अलावा अगर आप ऑप्ट करना चाहते हो तो हमारे पास कौन कौन से कोर्सेज ओपन रहते हैं। आज के टाइम में हर बंदा अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, किस हिसाब से कि वो अपने आप को ढालता चला जा रहा है, जैसे जैसे समय मूव ऑन कर रहा है। हम सारा दिन मोबाइल देखते हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जा रही है, हम मोबाइल्स में आ गए हैं, तो हम अपने जो सर्विसेज हैं, चाहे मेडिकल सेक्टर डॉक्टर लाइन के भी हैं, वो भी हम अपने फ़ोन के ऊपर भी सर्विसेज, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहाँ पे आप इन चीज़ों को
प्लेटफॉर्म पे आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो ये कैरियर परस्यू करने के बाद। उसके अलावा अगर आप डॉक्टर नहीं बनना चाहते, अगर आप और कोई फील्ड लेना चाहते हो, तो आपके पास पूरा का पूरा लाइफ साइंसेज का सेक्टर जो है वो ओपन है, राइट। तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री जो है वो मेडिकल साइंसेज का फील्ड है, राइट। ग्रेजुएशन होगी, 12th के बाद जो ग्रेजुएशन आती है उसमें बैचलर्स के कोर्सेज आते हैं बीएससी, तो आप बीएससी बायोकेमिस्ट्री ऑप्ट कर सकते हो। अगर आप लिखना चाहो तो आप नोट कर लो, बायोकेमिस्ट्री एक बहुत ही अच्छा ओपन अप जो है बहुत बड़ा फील्ड है, जहाँ पे आप कहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, केमिकल इंडस्ट्रीज में आप ज्वाइन कर सकते हो, फिशरीज डिपार्टमेंट्स में आप ज्वाइन कर सकते हो, फॉरेंसिक्स लैब्स में आप ज्वाइन कर सकते हो। आप कहीं पर भी जो लाइफ साइंसेज के पीएचडी स्कॉलर्स होते हैं, आप पीएचडी भी उसमें परस्यू कर सकते हो, राइट। तो बायोकेमिस्ट्री इज गिविंग यू अ वाइड स्कोप एंड इज ओपनिंग अप लाइंस फॉर यू, जहां मर्जी आप इसमें एनरोल हो सकते हो, बिकॉज इट इज फॉर्मिंग द बैकबोन। फार्मेसी वाले आते हैं, उनके लिए भी बायोकेमिस्ट्री एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, क्योंकि वो बेसिक है मेडिसिन का। इसमें आप पढ़ना क्या होता है, इसमें यही पढ़ाया जाएगा कि आपके बॉडी से रिलेटेड जो केमिस्ट्री है, ऑल द मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो आपके बॉडी में चल रहे हैं, उनके अकॉर्डिंगली क्या क्या है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ के बारे में पढ़ाया जाता है बीएससी। आप उसमें एमएससी भी परस्यू कर सकते हो, फर्दर आपके पास आता है पीएचडी, राइट। इसके अलावा माइक के बिना बोलूं, माइक के बिना ठीक है, माइक के बाद ठीक है। माइक के बिना बोलूं, हाँ यस। उन दो माइक आप बोल रहे मैडम। इसको उठाओ, हाँ जी सर। ओके। Am I audible? नहीं सर, आई क्या भी खाना नहीं आने वाली। Am I audible? Can you hear me at the back? Okay, हाँ जी, हाँ जी। fine. So I was talking about biochemistry. Now I will be talking about the other subject, मैं आपको थोड़ी देर pharmacy, pharmaceutical industry, right? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आपके लिए ओपन है। उसके लिए आपने क्यों आप फार्मेसी में इंटरेस्ट लेंगे, यानी कि अगर आपको ड्रग डिज़ाइनिंग का शौक़ है, आपको दवाइयों का शौक़ है कि दवाइयाँ कैसे हमने देनी है, कौन सी दवाइयाँ कैसी होती हैं, ठीक है, केमिस्ट शॉप्स आप चला सकते हो, वो सारी की सारी क्या है आपके फार्मेसी में आते हैं। ड्रग्स को डिज़ाइन करना, ड्रग्स कैसे बनाना है। अभी रिसेंटली क्या हुआ था, कोविड आया था। कोविड के टाइम पर सबसे ज़्यादा डिमांड में हमारे को ड्रग्स चाहिए थे कि नहीं। तो इस वाले टाइम पर जो ओपन अप होता है, आपका कौन सा सेक्टर ओपन अप होता है, एक तो रिसर्च का सेक्टर, प्लस आपके पास फार्मास्यूटिकल वाला सेक्टर ओपन होता है, जहाँ पर आपके पास ड्रग्स आती हैं और आप उन दवाइयों को बनाना सीखते हैं, उनको देना सीखते हैं। बहुत सारे स्कोप इसके लिए और भी रहते हैं। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इज़ बायो इन्फॉर्मेटिक्स। कभी सुना है बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में? किसी ने बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में सुना है? ओके। तो जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि आज के टाइम में हम मोबाइल फ़ोन्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि अब सारा कुछ टेक्निकली हो गया है। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या करता है, अगर सपोजिंग एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, अगर आप में से किसी ने कोई वीडियो बनाया, राइट, और आपने वो कहाँ दिया, सोशल मीडिया के ऊपर आपने उसको डाला। अब आपने उसको क्या किया, आपने तो सोशल मीडिया पे डाल दिया, लेकिन उसके ऊपर आपका लेबल लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। और किसी ने अगर आपके बिना परमिशन के उसको यूज़ किया, तो आप उसके ऊपर केस डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं? डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या करते हैं, आपके जितने रिसर्चेस वगैरह होते हैं, उनका एनालिटिकल डेटा फॉर्म जो है वो स्टोर करने में सक्षम रहता है। आया समझ? तो वो क्या करने वाले हैं, वो ऑनलाइन वाला काम बहुत रहता है। जितने भी सर्वेज होते हैं, पॉपुलेशन के सर्वेज हो गए, राइट, पॉपुलेशन के सर्वेज हो गए, क्लाइमेट चेंजेस के सर्वेज हो गए, उन सब का जो डिटेलिंग है उनको भी वो स्टोर करता है। प्लस जो न्यू रिसर्चेस आ रही हैं उनका जो डेटा है उसको वो स्टोर करके रखता है। सो व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ कि आपने अगर कोई रिसर्च की, तो आप क्या करोगे, उस रिसर्च का पहले से कोई है तो नहीं जिसने पहले रिसर्च की हो और हमारे ऊपर ये बात आ जाए कि हमने उसका चोरी कर लिया कंटेंट। तो बायो इन्फॉर्मेटिक पूरा का पूरा एक लाइब्रेरी भी देता है आपको, वो आप कंप्यूटर्स के ऊपर रहता है सारा काम।
वो पूरा का पूरा मेंटेनेंस भी रहता है, जिसमें आपके पास क्या है, आप नोट डाउन कर सकते हैं, आप उसमें डालेंगे डीएनए सीक्वेंसेस। सपोजिंग हमने कुछ नया डीएनए निकाला एग्जांपल के तौर पे, और वो डीएनए को हमने वो पहले कभी किसी ने स्टडी नहीं किया, हमने बायो इन्फॉर्मेटिक्स पे जाके हम उसको डालते हैं, उसमें चेक करेंगे कि हमारे पास है, लाइब्रेरी है कि नहीं है, इसमें हमारे पास पहले रिसर्च हुआ है कि नहीं हुआ, तब हम उसको पेटेंट करवा सकते हैं अपने नाम पर कि ये हमारा ही है। अगर कोई यूज़ करेगा तो वो हमसे परमिशन लेगा। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स का दायरा जो है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि उस पर आपको सारा का सारा डाटा रिकॉर्डिंग सारा करना होता है। जितना भी आपके पास मेडिकल फील्ड से रिलेटेड डाटाज हैं, सर्वेज हैं, वो सारे के सारे आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स में ला सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट यहाँ पर? तो कौन कौन सा फील्ड अभी हमने कवर अप किया? बायोकेमिस्ट्री, राइट, फार्मेसी और बायो इन्फॉर्मेटिक्स। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इज़ द वेटरनरी साइंसेज, जो मैंने पहले एक बार बोल चुकी हूँ। उसके बारे में थोड़ा सा मैं और बताना चाहूँगी कि वेटरनरी साइंसेज के अंदर भी आप बीएससी कर सकते हैं। वेटरनरी साइंसेज में ज़रूरी नहीं है कि आपने एक जो एनिमल्स का डॉक्टर बनना है वही बनना है। उसके अलावा आप एनडीआरआई, करनाल में सुना है आपने? सुना है एनडीआरआई किसी ने? एनडीआरआई में आप रिसर्च प्रोग्राम्स पे काम कर सकते हैं। अच्छी से अच्छे बफलोज की ब्रीड बनानी, अच्छा सा अच्छा जो मिल्क प्रोडक्शन है वो करवाना, प्लांट्स को जो है ट्रांसजेनिकली हम उसको कैसे बना सकते, हाइब्रिड्स बनाने। हाइब्रिड्स का नाम सुना है कभी आपने? आपने कभी हाइब्रिड का नाम सुना है? यानी कि दो चीज़ों का मिक्सचर। मान लो मेरे पास एक टमाटर है, उसके ऊपर एक प्लांट है टमाटर का, उसके ऊपर कीड़ा लग जाता है, राइट, और एक प्लांट जो है टमाटर का, उसके ऊपर क्या है कि जो टमाटर आ रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं। अब मुझे उन दोनों का मिक्सचर करना है। हाउ विल आई डू इट? इसमें बायोकेमिस्ट्री भी काम आएगा, इसमें वेटरनरी साइंसेज भी काम आएगा। हम उनके जीन्स को एक्सट्रैक्ट करके कॉम्बिनेशन बना के एक पूरा का पूरा हाइब्रिड प्लांट जो है वो तैयार कर सकते हैं। आजकल यही हो रहा है, जितना भी मार्केट में ऑर्गेनिक फूड मिल रहा है आधे से ज़्यादा हाइब्रिडाइजेशन से ही बना है, राइट। अच्छा, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंसेज में आपके ये वाले फील्ड्स ओपन अप हो जाते हैं। प्रोडक्शन ऑफ गुड मिल्क, अच्छा चीज़ मिलना, डायरी में हम क्लोन्स बनाने, अच्छी ब्रीड्स को लेकर आना, ये सारा का सारा आपके पास एनडीआरआईज में होता है, वेटरनरी साइंसेज में होता है। और पशु पालन करना, उनको कैसे मेंटेन करना है, वो भी आपके वेटरनरी साइंसेज में बताया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऑल्सो बिकम अ वेटरनरी डॉक्टर, और उसके अलावा आप वेटरनरी साइंसेज का खुद का प्रैक्टिशनर बनकर आप एनिमल्स के डॉक्टर भी बन सकते हो। क्लियर है सबको? और कुछ किसी को कोई क्वेश्चन यहाँ पे? ओके, द नेक्स्ट फील्ड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज फॉरेंसिक्स। सब लोग सीआईडी देखते हैं, सीआईडी देखते हैं और वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। इंटरेस्टिंग लगता है? किस किस को इंटरेस्टिंग लगता है? रेज योर हैंड्स। किसी को भी नहीं? अभी तो सारे बोल रहे थे अच्छा लगता है। यस, प्लीज रेज योर हैंड। ओनली कुछ बच्चों को। फाइन। फॉरेंसिक साइंस जो है आपके पास एक और बहुत अच्छा जिम्मेवारी वाला काम है वैसे तो, बट बहुत अच्छा फील्ड है। उसमें क्या है, आप बीएससी बायोलॉजी परस्यू करके भी जा सकते हैं, बीएससी बायोकेमिस्ट्री परस्यू करके भी जा सकते हैं, और जो नॉन मेडिकल वाले हैं वो अपना दिल ना गिरो, आपके नॉन मेडिकल वाले भी फॉरेंसिक्स लैब में जा सकते हैं। बिकॉज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो ये अलग नहीं हैं, ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड सब्जेक्ट्स हैं, और इनके अलग अलग फील्ड्स में इन सभी की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले नॉन मेडिकल वालों को भी थोड़ा मैं बता दूं कि आप फॉरेंसिक्स लैब में कहाँ पर ज्वाइन इन कर सकते हैं। आप बैलिस्टिक डिपार्टमेंट्स में ज्वाइन कर सकते हैं। बैलिस्टिक डिपार्टमेंट कौन सा है? आप बीएससी बैलिस्टिक में भी कर सकते हैं, बैलिस्टिक साइंसेज में भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके जितने भी फील्ड्स मैं यहाँ पे बता रही हूँ इनके आगे भी फील्ड्स हैं। समझते हैं आप? इनके आगे भी फील्ड्स हैं जिनको आप परस्यू कर सकते हो एज अ स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट्स। तो बैलिस्टिक डिपार्टमेंट्स में जहाँ पर आपके क्राइम सीन्स होते हैं, क्राइम सीन्स के ऊपर जो आपको हथियार मिलते हैं, उन हथियारों की जो जांच पड़ताल होती है वो सारी की सारी बैलिस्टिक डिपार्टमेंट में होती है। इफ़ यू आर अ नॉन मेडिकल स्टूडेंट यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर बैलिस्टिक डिपार्टमेंट्स इन द फॉरेंसिक्स लैब्स, राइट। अनदर बीएससी बायोलॉजी वाले जो हैं वो भी रिक्वायरमेंट रहती है फॉरेंसिक्स लैब में। उनमें क्या होता है, जैसे कि आपके पास सैम्पलिंग आती है, सैम्पल्स होते हैं, उन सैम्पल्स को टेस्टिंग वगैरह करना। बायोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंगली आप जा सकते हैं ड्रग डिपार्टमेंट्स में भी, फार्मेसी वाले भी ड्रग डिपार्टमेंट्स में जा सकते हैं, जहाँ पे आप ड्रग्स जहाँ से पकड़ी जाती है उनके ऊपर टेस्टिंग वगैरह करके आप क्या करते हैं, रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं।
अंडरस्टूड? ये 5 है मेरे पास अभी जो कैरियर के लिए मैं लेकर आई हूँ सब्जेक्ट्स। अगर आप इनके अलावा और कुछ जानना चाहते हैं, यू आर ऑलवेज ओपन अप। यहाँ पे मैं बैठी हूँ, आप में से और भी फील्ड्स के बारे में जान सकते हो, बिकॉज देयर आर बहुत सारी फील्ड्स हैं, अ नंबर ऑफ फील्ड्स। वी हैव बॉटनी, BSc बॉटनी, BSc जूलॉजी, BSc बायोकेमिस्ट्री, BSc एग्रीकल्चर में भी आप जा सकते हो। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स में जब आप जाते हो, उसमें जितने बोटानिकल चीज़ें हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं पेड़ों में भी, प्लांट्स में आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो उनमें भी आप जा सकते हो एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट्स में, राइट? सो एनी अदर फील्ड यू वुड लाइक टू एक्वायर अबाउट, यू आर ओपन अप, मतलब द स्टेज इज ओपन फॉर यू, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ठीक है, समझ में आया? एनी अदर क्वेश्चन? ओके, सो आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर लेंडिंग मी योर ईयर्स, and any other query you can ask me. Thank you. उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। किसी की कोई इंक्वायरी रहती है तो बाद में हम यहीं पे रुकेंगे 10 से 15 मिनट, तो आपने पूछना है। अब मैं आमंत्रित करता हूं गोविंद सिंह भाटिया जी, सोशल वर्कर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। ध्यान से सुनना है आपने, कोई क्वेरी रहती है तो बाद में पूछना जरूर है सर। कोडिंग पे हैं दोनों बात, जहाँ यहाँ रहे तो ज़्यादा बढ़िया। कॉमर्स Respected management members, principals, parents, teachers and students, good morning all of you. Good morning. क्या बात, आवाज़ दिल्ली से आ रही है बेटा? नाश्ता करके आए हो ना? नाश्ता करके आए हो? गुड, वेरी नाइस। सबसे पहले तो धन्यवाद मैं भाई हरदेव सिंह जी, कल ही इनका फ़ोन आया कि दून इंटरनेशनल स्कूल में जाना है, तो वहाँ के मैनेजमेंट और प्रिंसिपल साहब ने इनसे बातचीत की कि 10th और 12th के बच्चे, जो 9th से 10th में आ गए हैं बच्चे, जो 11th से 12th में बच्चे आ गए हैं, उनको सर्जिकल स्ट्राइक करना है। सर्जिकल स्ट्राइक नाम सुने ना बेटा? पीछे की नहीं थी पाकिस्तान वालों में, मोदी जी ने की थी ना सर्जिकल स्ट्राइक, तो ये सर्जिकल स्ट्राइक है, सर्जिकल स्ट्राइक करना है। तो इन्होंने बातचीत की, तो मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि आज इस स्कूल के अंदर भाई हरदेव सिंह जी की बदौलत, जो हमारे प्रिंसिपल साहब, इनकी बदौलत आपसे रूबरू होने का, आपसे दो बात करने का मौका मिला है। तो सबसे पहले मैं इनके प्रणाम करता हूँ भाई अपने रिटायर्ड सूबेदार श्री हुक्म सिंह जी चौहान, मल्टी डिमेंशनल पर्सनैलिटी, अच्छे सोशल वर्कर। इनको देख के अंदर हमारे अंदर जो है वो एक एनर्जी आती है कि 37-38 साल हो गए फौज में से रिटायर होके, तो पेंशन आ रही है, अच्छी ज़मीन जायदाद है, तो स्कूलों कॉलेजों के अंदर केवल जिला यमुनानगर में नहीं, पूरे हरियाणा, पंजाब, अपना यूपी, राजस्थान, कई स्टेट्स के अंदर जाके बच्चों को मोटिवेट करते हैं मॉरल एजुकेशन के बारे में। तो बहुत बड़ा फील्ड है बेटा, बहुत नेक काम कर रहे हैं कि इनका मकसद है कि अगर मेरे कहने से एक बच्चा भी इस देश का अच्छा होनहार नागरिक बन गया, अच्छा संस्कारित बच्चा बन गया, तो मैं समझूंगा कि मेरा जीवन जो धन्य है। अब आए अपनी बात के ऊपर बेटा। तो मैं तो समझता हूँ कि मैनेजमेंट का भी धन्यवाद, प्रिंसिपल साहब का धन्यवाद कि इन्होंने इस किस्म की गोष्ठी, इस किस्म का सेमिनार, ये वर्कशॉप, ये चिंतन, ये मंथन, ये मैं कहता हूँ इस किस्म के चिंतन मंथन चलते रहने चाहिए, ये वर्कशॉप होती रहनी चाहिए। इससे एनर्जेटिक डोज मिलती है बेटा, मोटिवेशन मिलती है, एनर्जी मिलती है, बहुत अच्छी बात है बेटा। अब तो बच्चे 9th से 10th में
+1 से 12th में दोनों क्लासेज बेटे बोर्ड क्लासेज और दोनों बहुत मेन क्लासेज, और पेरेंट्स के अंदर भी एक उत्सुकता, एक कितने विचार उनके अंदर दिमाग के अंदर घूम रहे हैं कि मेरा बच्चा 10th में हो गया है, अब उसके बाद क्या करवाएंगे। अभी से ही पूछना शुरू कर दिया रिश्तेदारों से, लोगों से भी क्या करवाएं, आर्ट्स लें, कॉमर्स लें या साइंस लें, पॉलिटेक्निकल करवा दें, कोई टेक्निकल कोई ऐसा कोई कोर्स करवा दें, या फिर +2 में जो बच्चा है +2 के बाद बाहर भेज दें, उसका बच्चा कनाडा चला गया, वो इंग्लैंड चला गया, वो ऑस्ट्रेलिया चला गया, वो न्यूजीलैंड चला गया, क्या करें। इतनी एक्सरसाइज उनके दिमाग की, बेटा जी आप उनका एक एक मिनट का एहसान नहीं चुका सकते। सबसे पहली बात मैं आपके पेरेंट्स को भी नमन करता हूँ, जिनके मन के अंदर बेटा आपके प्रति ये एक्सरसाइज, आपके प्रति ये विचार चल रहे हैं कि मैंने अपने बच्चे को क्या बनाना है। उनकी मेहनत आपने जाया नहीं जाने देनी, उनको जो है बेटे उनकी आशीषों के बल पे ही आप जो है अच्छे महान नागरिक बन सकते हैं। मैं बात शुरुआत करूँ, अगर थॉमस एडिसन का नाम किस किसी ने सुना है, बताओ बेटा। वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत सारे बच्चों ने, कि उसने ये बल्ब और सैकड़े 1093 इतनी इन्वेंशंस की हैं। तो वो क्लास में सबसे नखिद, सबसे डिफाल्टर, सबसे निकम्मा, सबसे नलायक वो बच्चा, टीचर्स ने हाथ खड़े कर दिए कि इस बच्चे को हम नहीं पढ़ा सकते, इतना नलायक बच्चा है, हमारी बात नहीं सुनता, कहते कुछ है करता कुछ है। तो उन्हें टीचर्स ने एक लेटर लिख के भेजा उनके घर, तो कहते बेटा अपनी माँ को देना। माँ ने एक ही रीडिंग में उस लेटर को पढ़ लिया, रोने लगी। माँ क्या बात, ऐसा क्या लिख दिया मेरे टीचर्स ने लेटर में, तू तो रोने लगी है। नहीं बेटा ये खुशी के आंसू हैं। बिल्कुल उल्ट पढ़ के सुना दिया जो लिखा था। कहता है इसमें लिखा है बेटा तू बहुत इंटेलिजेंट है, तू बहुत होनहार है, तू बहुत काबिल है, तू बहुत पढ़ाई में होशियार है, हम टीचर्स तेरे को इस बच्चे को पढ़ाने के काबिल नहीं हैं, पढ़ाने के काबिल नहीं है। तो उस माँ ने बच्चे को घर पर ही पढ़ाया, बेसिक एजुकेशन देने के बाद फिर किसी और स्कूल के अंदर, फिर कॉलेज में पढ़ाया, फिर कितना महान नागरिक बना, वो कितना वैज्ञानिक बना, साइंटिस्ट बना। 1093 उसने इन्वेंशंस की। जब उसकी मदर की डेथ होगी, वो फिर अपने पुराने मकान में गया, उसने सारा सामान देखा, तो उसको वो लेटर मिल गई कि जो उसके टीचर्स ने लिखी थी। तो वो लेटर देखी, उसमें लिखा था बच्चा बड़ा नालायक है, हम इसको पढ़ा ही नहीं सकते। तो माँ की आशीष के कारण, माँ की बातचीत उसके किस तरीके से उसको एनर्जी चेंज कर दी बेटा बच्चे की। तो इन माँ बाप का कर्जा बेटे कभी चुकाया नहीं जा सकता। एक प्रोफेसर पंजाबी का मोहन सिंह कवि हुआ है, वो कहता है कि दुनिया के लोगों, मैं जानता हूँ कि स्वर्ग कहाँ पर है। सवाल हो गया उसके ऊपर कि तू स्वर्ग गया नहीं, तेरे को स्वर्ग का क्या पता है। कहते हाँ मैं जानता हूँ स्वर्ग कहाँ पर है, स्वर्ग का मैंने एहसास किया है। कहता है जिस तरीके से बर्फ की ठंडक को पकड़ा नहीं जा सकता, बर्फ की ठंडक को एहसास किया जा सकता है, आग के सेक को पकड़ा नहीं जा सकता, आग के सेक का एहसास किया जा सकता है। मैं स्वर्ग नहीं गया, लेकिन मैंने स्वर्ग का एहसास किया है, मुझे पता है स्वर्ग कहाँ पर है। स्वर्ग, उससे सवाल हो है स्वर्ग कहाँ पर है। कहता है स्वर्ग माँ के पल्लू में है, माँ की गोद में है, माँ के प्यार में है, माँ की आशीष में है। तो उसने 4 लाइनें कही कि माँ झिया कन छावा बुट्टा मैनू नज़र ना आवे, जिस तो लैके छां उधारी, रब ने स्वर्ग बनाए बाकी कुल दुनिया दे बूटे, जड़ सुक्या मुरझांदे ऐ पर बूटा फुल सुक्या मुरझाए, ऐ पर बूटा फुल सुक्या मुरझाए। तो ये बेटा भले ये कैरियर काउंसलिंग, आप बच्चे छोटी क्लासेज हैं, अभी नाबालिग बच्चे हो, आपको बेटा एहसास होगा बिल्कुल
जब आप सुबह तैयार होके बस पे आपके पेरेंट्स छोड़ने जाते हैं, कई बार तो थाली में एक रोटी खाई है तो माँ कहते हैं बच्चे को छोड़ के आओ, उसकी बस का टाइम हो गया है, एक रोटी वो ठंडी रोटी बाद में खाते हैं। अगर वो दुकान पे कहीं कंपनी में कहीं नौकरी कर रहे हैं तो उनका ध्यान बच्चे की तरफ है कि स्कूल से घर पे आ गया, घर से ट्यूशन पे चला गया, क्या खा रहा होगा। तो माँ की चिंता कि बच्चा स्कूल में से आने वाला है, दोपहर को क्या बनाऊँ, फिर रात की चिंता, फिर अगले दिन सुबह की चिंता, फिर अगले दिन दोपहर की चिंता। एक दिन का काम नहीं, 2 दिन का काम नहीं, एक हफ्ते का काम नहीं, 2 हफ्ते का काम नहीं, महीने का काम नहीं, बेटा कितने सालों की तपस्या है जो एक उम्मीद लेके बैठे हैं। बेटा उनकी उम्मीद को, उनके विश्वास को बेटा जी आपने ख़त्म नहीं करना। चाहे बेटा है चाहे बेटी है, तो उनके विश्वास को, माँ बाप के विश्वास को ख़त्म नहीं करना। तो उनकी बेटा जो एक वो उजाला लेके उनके अंदर बेटा एक विचार है, एक भावना है कि मेरा बच्चा होनहार बने। जरूरी नहीं हम होकर रहेंगे कामयाब, बोले हम होकर रहेंगे बेटा, जरूरी नहीं कि हमारा लक्ष्य है टॉपर बनना ही है, ये क्लास में से टॉपर हो जाए, ऐसी कोई भावना, ऐसी बात नहीं। अच्छे हाउ टू लिव, हाउ टू ईट, हाउ टू टेक, हाउ टू लाभ, समाज में किस तरीके से हंसना है, किस तरीके से उठना बैठना है, किस तरीके से खाना पीना है, ये संस्कार आने चाहिए। अगर कोई बेटी की शादी हो जाती है, दूसरे घर में जाती है ना, दूसरे घर में जाती है, वो अच्छा काम ना करे तो क्या कहते हैं, एक बार गलती को नज़रअंदाज कर दिया, दूसरी बार तीसरी बार कि तेरे माँ बाप ने यही सिखाया है। अगर बच्चे घर में गलती करें तो क्या कहते हैं, गाली किसको पड़ती है, टीचर्स को, कि तेरे मास्टरों ने यही सिखाया है, तेरे तुझे स्कूल से यही सीख के आई है। तो बेटा दोष देख लो किसको किसको मिलता है समाज में, गलती कौन कर रहा है और सज़ा किसको मिल रही है, दोष किसको मिल रहा है। बेटा अच्छे संस्कार लेना, ये भावना हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम अच्छी बातें सीखें। ये तभी मैं कहता हूँ ये गोष्ठी, ये चिंतन, ये वर्कशॉप एक सत्संग है बेटा। इस चीज़ को आपने सत्संग समझना है कि सत्संग का मतलब जहाँ पर अच्छे गुणों की संगत है। सत्संगत का मतलब यही नहीं जहाँ पर ढोलकियाँ, छाने, चिमटे और कत्ती 51,000 वाला एक बाबा बैठा है और वो प्रवचन कर रहा है, वो सत्संगत नहीं है बेटा, वो बिजनेस है। सत्संगत ये है, स्कूल सबसे बड़ा मंदिर, गुरुद्वारा, तीर्थ है जहाँ पर बिना धर्म के, बिना मजहब के, बिना जात पात के, बिना बरादरी के, बिना किसी और भेदभाव के सब बच्चों को एक जैसा समझा जाता है, एक जैसी तालीम दी जाती है, एक जैसी नसीहत दी जाती है, एक अच्छे गुणों की नसीहत दी जाती है। तो ये सत्संगत, ये मंदिर, ये गुरुद्वारा, ये तीर्थ, ये मस्जिद, ये है बेटा। तो खैर अब 10th 12th मेन क्लासेज 10वीं और 12वीं, और जो 10वीं वाले बच्चे अब आए हैं उनको तो ये एहसास करना चाहिए बेटा कि 2-3 साल पीछे आपके 2 साल कोरोना ने ख़त्म कर दिए, उसके बाद 1-1.5 साल आप थोड़ी सी आपने कवरिंग की है, थोड़ा बहुत आप कवर कर पाए हो। अब वो बच्चे 10th में हो गए और जो बच्चे +2 में आते हैं उनका भी हालात यही है बेटा जी। टाइम मैनेजमेंट आपने सबसे बढ़िया रखना है बेटा, अभी से ही अपने हौसले को कम नहीं होने देना। जो टीचर्स आपको काम करने के लिए दे रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं, प्रॉपर बेटे टाइम का यूटिलाइज करो, प्रॉपर बढ़िया तरीके से होमवर्क करो, एक्स्ट्रा काम करो। आपके पेरेंट्स अपनी एक रोटी कम करके, अपनी सहूलतें कम करके, अपनी सुविधाएं कम करके आपके लिए बेटा कोई रेफरेंस बुक, कोई हेल्प बुक, कोई ट्यूशन, हर तरीके के आपके लिए जो हैं वो अच्छे तरीके से कर रहे हैं काम, भाई आपके मेरे बच्चे को सुविधा, अच्छी सुविधा मिले। तो मैं समझता हूँ, मैं तो स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी, इनके जो मेंबरान हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने सोचा कि हमारे इस इलाके में ये स्कूल ज़मीन पड़ी है कि बच्चे यहाँ से, ये ग्रामीण अंचल है, ये गांव के देहात का इलाका है, बच्चे जगाधरी जाते हैं, यमुनानगर जाते हैं और बारे रास्ते में इंसिडेंट होते हैं, बच्चा 35-40 किलोमीटर दूर दूर जा रहा है। तो अपने क्यों ना इस इलाके के अंदर बच्चे को वही एटमॉस्फेयर दिया जाए, वही फैसिलिटीज़ दी जाएँ कि बच्चे को जो है एक अच्छा वातावरण दिया जाए, बच्चा वही पढ़ाई यहाँ पर पढ़ सके। बेटा ये दून इंटरनेशनल स्कूल, इसका नाम है इलाके के अंदर,
पूरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं, पूरी स्टेट के अंदर बेटे दून इंटरनेशनल स्कूल, यहाँ पर कंपटीशन एग्ज़ाम्स के सेंटर भी बनते हैं। तो बीएड और ये सूर्य आपकी ये सारी क्लासेज बेटा, तो आप मैं खुशकिस्मत हो कि आपने स्कूल के अंदर दाखिला लिया है। आपके ऊपर बेटा स्टैंप लग गया कि आप दून इंटरनेशनल स्कूल के स्टूडेंट्स हो। जब आप बड़े होके आप में से बहुत सारे, जब वैसे शुरू में जब बच्चा बड़ा होता है थोड़ा बहुत बोलना शुरू करता है तो माँ बाप अक्सर पूछते हैं बड़ा होके क्या बनेगा। अक्सर पूछते हैं कि पूछते बच्चों से, मैं बड़ा होके पुलिस में जाऊँगा, बड़ा होके डॉक्टर बनूँगा, बड़ा होके इंजीनियर बनूँगा। तो उनको सपनों को, उनके माँ बाप के सपनों को बेटे हकीकत में भी बदलना है। केवल वो छोटे बचपन वाली बातें वहीं तक सीमित ना रह जाएं कि मैं डॉक्टर बनना है, मैं इंजीनियर बनना है। बहुत सारे जो +2 में बच्चे हैं उनके दिमाग में ये बात हो गया, उनके पेरेंट्स के, कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करवानी है। किस किस ने सोचा बेटा, हाथ खड़े करो। सिविल सर्विसेज के बारे में कौन जानता है? सिविल सर्विसेज के बारे में, ये जो यूपीएससी के बारे में कौन कौन जानता है बेटा? कोई नहीं बेटा? नो। हाँ, वेरी गुड बेटा। बहुत सारे बच्चे जानते भी हैं, कोई बात नहीं। कुछ बच्चे हाथ खड़े नहीं करते। बेसिकली ये बेटा उसके आफ्टर ग्रेजुएशन में होता है, लेकिन +2 के बाद ही, 10th के बाद ही बहुत सारे बच्चे अपनी लाइन बना लेते हैं बेटा कि मैंने तो सिविल सर्विसेज में HCS, PCS या कोई ये UPSC वाला, IAS, IPS, IFS, IRS ये जो बनते हैं, तो जो प्रशासनिक सेवाएं हैं, तो मैं उनके अंदर जाना है। बड़ी अच्छी लाइन बेटा। अगर आप बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हो तो छोटे लेवल की तैयारी अपने आप हो जाती है। पहले क्लैरिकल जॉब के लिए, चाहे पटवारी है, ग्राम सचिव है, क्लर्क के लिए बेसिक क्वालिफिकेशन मैट्रिक होती थी। अब बेसिक क्वालिफिकेशन कौन सी कर दिया है? +2। अब बेसिक क्वालिफिकेशन क्या कर दिया है? +2 बेटी कर दिया है। तो +2, फिर उसके बाद वो जो क्लास C, ये जो क्लैरिकल, ग्राम सचिव, पटवारी, नर्सेज, ये जॉब लेने के लिए एक हरियाणा सरकार ने एक पेपर शुरू किया है। पता है आपको पेपर का नाम बेटे? कौन बता सकता है? अभी पेपर हुआ था 2-3 महीने पहले। हरियाणा के लगभग 7.5 लाख लोगों ने पेपर दिया था। CET, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। क्योंकि बेरोजगारी इतनी हो गई है बेटा, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी हो गई है कि सरकार को भी कोई ना कोई फंडा ढूंढना पड़ता है, कोई तरीका ढूंढना पड़ता है कि किस तरीके से इनकी स्क्रीनिंग की जाए, किस तरीके से इनकी छंटनी की जाए। तो फिर एक कॉमन पेपर रख दिया, उसके अंदर B.Tech वाले ने भी, M.Tech वाले ने, MBA, MCA, सब बच्चों ने, वो MPhil, PhD बच्चे ने भी पेपर दिया। वो +2 बेसिक क्वालिफिकेशन उसकी +2, तो लगभग 7.5 लाख लोगों ने पेपर दिया। तो अभी थोड़े दिन पहले उसका बेटे, 1 महीने पहले या 20-25 दिन पहले उसका रिजल्ट आया है, तो उसमें से बहुत कम बच्चे पास हुए हैं। देख लो, +2 लेवल का पेपर, और बेरोजगारी इतनी, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है कि MPhil, PhD वाले भी, B.Tech, M.Tech, MBA, MCA वाले बच्चे भी उसके लिए पेपर दे रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब, इसका मकसद ये है कि आप जो भी काम करो उसके अंदर रुचि दिखाओ, इंटरेस्ट शो करो। आप अपना कोई भी लाइन माड़ी नहीं है। आप चाहे अपना फ्रिज, अपना टीवी फ्रिज करना, अपना ये रिपेयर करना सीख रहे हैं, चाहे आप AC की रिपेयर करना सीख रहे हैं, कोई और किसी भी क्लास में जा रहे हो, कोई भी पढ़ाई पढ़ रहे हो, उसके अंदर आप अपना पूरे इंटरेस्ट शो करो, बढ़िया तरीके से पढ़ो। आप MA इंग्लिश कर रहे हो, MA मैथमेटिक्स कर रहे हो, और मैडम ने मेडिकल साइंसेज के बारे में बहुत सारे बताया। चाहे वो कोई भी आप लाइन आपने चूज कर ली है, कईयों से कई पेरेंट्स और सलाह मशवरा करके, कैरियर काउंसलिंग करके, या घर के अपनी सिस्टम के अनुसार अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन देख के वो अपना एक एम बना लेते हैं कि बच्चे को चलो जी इस लाइन के अंदर हमने कर देना है। कई बार वो लाइन परिस्थितियों के अनुसार चेंज भी करनी पड़ती है, कई बार वो बाद में चेंज भी हो जाती है, तो कोई बात नहीं बेटा। तो लेकिन आप जो भी काम करो उसके अंदर माँ बाप को एक पता लगे, आप उसके अंदर सफल हो या ना हो, आपका वो टेस्ट क्लियर है या नहीं है, लेकिन आपको खुद को पता है, पेरेंट्स को पता है कि बच्चे ने मेहनत में कसर नहीं छोड़ी, मेहनत में कसर नहीं छोड़ी। अगर आप
मोबाइल ही लेके बैठे हो सुबह से लेके शाम तक, क्या कर रहे हो? पेरेंट्स अपने दुकान पे चले गए या खेतों में चले गए और काम काज में चले गए, उनको आप बेवकूफ़ बना रहे हो। भाई मैं डाउनलोड कर रहा हूँ जी, एक लेसन आया था उसको डाउनलोड कर रहा हूँ जी, ये कर रहा हूँ जी, वो कर रहा हूँ जी, अपना होमवर्क कर रहा हूँ, और आप कर कुछ हो रहे हो बेटा, टाइम पास कर रहे हो आप उसके अंदर। ऐसा नहीं करना बेटे। ये सबसे पहले मैंने ये बात की कि पेरेंट्स के विश्वास को नहीं खोना। अगर आपको इतनी महंगी महंगी सुविधाएं दे रखी हैं, इन बेचारों ने कभी कार नहीं रखी, मोटरसाइकिल नहीं रखी, साइकिलों पे स्कूल में गए हैं ये, तो ये साइकिलों में स्कूल गए हैं, आप अपने पेरेंट्स के कभी पास बैठ के तो देखना, वो बताएंगे कि उनके मम्मी पापा, अपनी दादा दादी के पास बैठ के देखना, वो बताएंगे कि आपके मम्मी पापा दिए की रोशनी में, लैंप में, मोमबत्ती की रोशनी में पड़े हैं। तो आजकल तो पता नहीं लगता लाइट गई कि नहीं गई, इन्वर्टर लगे हुए हैं, साथ के साथ लाइट आ जाती है, पंखा चल जाता है, पता नहीं लगता लाइट गई कि नहीं गई। तो उस समय की अब सहूलतें ज़्यादा हैं कि पहले सहूलियत ज़्यादा थी बेटा? अब सहूलियत है, और इन सहूलतों के अंदर भी हम ना पढ़ें, ना उनके माता पिता की उस आशा के अनुसार ना खरे उतरें, तो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। हम प्रयास करें, कोशिश करें, तो पेरेंट्स की और टीचर्स की शुभकामनाएं, दुआएं आपके हमेशा साथ रहें, क्योंकि खुदा मंजूर करता है दुआ जो दिल से होती है, लेकिन मुश्किल तो ये है कि बड़ी मुश्किल से होती है। हमारी सबकी दुआएं, हमारी सबकी ब्लेसिंग बेटा जी आपके साथ है। तो आप भले ही आर्ट्स से ले लें +2 के बाद, ये आप +2 आर्ट्स 10th के बाद आर्ट्स से ले लो। आर्ट्स के अंदर भी सो मैनी फील्ड्स। सबसे छोटी उम्र के अंदर बहुत बढ़िया अफसर बनने वाली लाइन NDA, साल में 2 बार पेपर होते हैं। एक बार जो ये बच्चे +2 में बैठे हैं, आर्ट्स विद मैथ हैं, वो आर्मी के अंदर या जो नेवी एयरफोर्स के अंदर, वो नॉन मेडिकल वाले, साइंस वाले दूसरे बच्चे जा सकते हैं। तो आप बेटा गर्ल्स भी जा सकती हैं। मतलब इतना कुछ है आपके पास मटेरियल, टीचर्स आपको गाहे और समय समय पर गाइड करते रहेंगे, करते रहते हैं। तो अब सितंबर में पेपर होंगे, अब मई के अंदर फार्म भरे जाएंगे NDA के, फिर उसके बाद दिसंबर, नवंबर, दिसंबर में फार्म होंगे। अब 21 मई को पेपर है उसका NDA का। +2 के बाद सबसे छोटी उम्र के अंदर सबसे बढ़िया लाइन, सबसे बढ़िया अफसर NDA। प्रयास तो करो, कोई भी टेस्ट आप दो, उसके बाद कोई बच्चा नीट की तैयारी करेगा, कोई JEE मेंस की तैयारी करेगा, किस तरीके से किसी को भी करो, आप बेटा मन से करो। सबसे बड़ी बात ये है, कोई भी लाइन बुरी नहीं। भी वो आर्ट्स में है, मैं नॉन मेडिकल में हूँ, वो कॉमर्स में है, तो कॉमर्स बहुत अच्छी लाइन है, बहुत अच्छी लाइन है। CA बन सकते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कहीं बहुत सारी कंपनियों का उनके पास अच्छी उसके इनकम हो जाती है, उनके कैश बुक्स, उनके सारा बिलिंग करनी, इनकम टैक्स रिटर्नें भरनी, बहुत सारे काम होते हैं बेटा। कॉमर्स की लाइन अच्छी है। आप वो सारे बहुत इतने पेपर हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के +2 के बाद। पहले होता था कि नंबरों के हिसाब से अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन मिलता है, इस साल से वो सिस्टम भी चेंज कर दिया। अब एक एग्ज़ाम आया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम देने के लिए, चाहे DU में लेना है आपने, या और दिल्ली के अंदर कोई और अच्छी यूनिवर्सिटियां हैं, या IPU है, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है, गुरुवंश यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटियां हैं। तो बताओ बेटा कौन से एग्ज़ाम का नाम बता सकते हो बेटा? +2 के बाद एग्ज़ाम होता है, बताओ। वेरी नाइस, गुड, क्लैपिंग करो इस बच्चे के लिए। CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, CUET। पहले था बच्चे के 96% मार्क्स आ गए, 95 इसका एडमिशन हो जाएगा, 94 वाले का एडमिशन हो जाएगा। अब तो बच्चा उसके अंदर 70% वाला भी जा सकता है और 95 वाला रह सकता है, 95 वाला रह सकता है। आप उसको बेसिक आपको नॉलेज जो अच्छी तरीके से, जिस सब्जेक्ट को पढ़ो अच्छी तरीके से समझ के पढ़ो, आपको उस चीज़ की नॉलेज भी होनी चाहिए, आपको पता भी होना चाहिए। और अगर मैं 90% तो 90% मेरे अंदर 90 वो वाली काबिलियत होनी भी चाहिए। तो आप वो एंट्रेंस टेस्ट है, उसके लिए फॉर्म वगैरह आप भरो, तो उसके लिए वो पेपर होगा, वो भी मई में पेपर है, उसका भी इस सेशन वाले के लिए। तो आपको कदम कदम पे गाए ये टीचर्स आपके जो अच्छा स्टाफ है यहाँ पर, वेल एक्सपीरियंस्ड, वेल अच्छे ट्रेंड, तो वेल क्वालिफाइड, ये अच्छा स्टाफ है बेटा जी आपको। तो मैं आपके टीचर्स के चरणों में भी सैल्यूट करता हूँ कि बच्चों को अच्छी जो है वो एजुकेशन दे रहे हैं।
बिल्कुल वो मैंने बेटा महसूस किया है कि वो बिल्कुल अपने धंधे को उन्होंने अपना धर्म बनाया हुआ है। हम लोगों ने अपने धर्म को भी बेशक धंधा बना लिया। जिस तरीके से संत गुरु रविदास महाराज ने जुतियाँ गांठते थे, बाबा नामदेव जी वो अपने कपड़े रंगना उनका काम था, बाबा कबीर जुल्हा उनका जो सूत काटना उनका काम था, उन्होंने अपने धंधे को धर्म बनाया हुआ था। इस तरीके से आपके टीचर्स भी पूरे ईमानदारी से मेहनत से अपने इन्होंने धंधे को धर्म बनाया हुआ है। हम लोगों ने अपने धर्म को भी धंधा बना रखा है। तो बस मैं विषय बेटा किसी एक सब्जेक्ट ले, अगर इसके ऊपर कोई होता ना बेटे, फिर मैं आपको वो तरीके से बताता। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, फिर आ जाती है वोकेशनल वो टेक्निकल लाइन, उसके बाद 4 लाइनें शुरू हो जाती हैं। तो आर्ट्स के अंदर आप सबको पता है, कॉमर्स के अंदर भी लगभग आप पता है बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी और कौन कौन से सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। इकोनॉमिक्स कॉमर्स वालों का भी सब्जेक्ट है और इनका आर्ट्स वालों का भी सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। फिर साइंस के अंदर फिर उसके 2 पार्ट हो जाते हैं, नॉन मेडिकल और मेडिकल। नॉन मेडिकल और मेडिकल, मेडिकल के अंदर मैथ नहीं है तो नॉन मेडिकल के अंदर मैथ आ जाता है। फिर कुछ बच्चे एडिशनल सब्जेक्ट भी उसके रख लेते हैं, फिर ITI पॉलिटेक्निकल, फिर वो सारे आ जाते हैं। तो मेरे ख्याल आप बच्चों को है ना बहुत ज़्यादा अपना बढ़िया अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो, टीचर्स आपको अच्छा प्रॉपर गाइड करते हैं। मैं 2 मिनट में अपनी बात कह के मैं अपना स्थान लेता हूँ, क्योंकि आप काफ़ी देर से बैठे हैं, आपके पेरेंट्स भी इन्होंने भी कामकाज होता है कि मेरा बेटा एक मिशन है। जहाँ पर भी मैं बात करता हूँ, चाहे मंदिर गुरुद्वारे के अंदर आज सेवा करो, सिमरन करो, सत्संग करो, ये बातें अक्सर सब जगह चलती हैं, लेकिन वातावरण बचाओ, पेड़ पौधे लगाओ। कोरोना के अंदर बेटे कितनी प्रॉब्लम रही ऑक्सीजन गैस के सिलेंडरों की। जब किसी हमारे बुजुर्गों ने लोगों ने पेड़ लगाए थे तो हमें ऑक्सीजन मिली है। हम कितने एफर्ट्स कर रहे हैं अपने बर्थडे पे, अगर अपने बर्थडे अगर हम मनाते हैं तो अपने 8-10 अपने फ्रेंड्स को बुलाते हैं, अगर हम एक पौधा भी लगा दें एक अपने बर्थडे के ऊपर, तो कितना समाज का भला होगा बेटा, कितना समाज का भला होगा। लकड़ी भी मिलेगी, ऑक्सीजन भी मिलेगी, फल भी मिलेंगे और कितना अच्छा वातावरण शुद्ध होगा। कितने लोगों का हम भला करेंगे, कितने लोगों का हम भला कर रहे हैं। जहाँ और उल जुलूल के और पेरेंट्स की आप मैरिज एनिवर्सरी मनाते हो, आप मम्मी पापा को बधाई देते हो कि आपको शुभकामनाएं, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। तो चलो आज मम्मी पापा के नाम के एक पौधा लगाएं और जिम्मेवारी लो, सिर्फ पौधा लगाएं, फिर उनकी हम परवरिश भी करें, हम उनकी परवरिश भी करें। कहीं परिवार के अंदर ब्याह शादी है तो बेटा इस तरीके से अपने मन में एक भावना लेके आओ, एक बात सोच के चलो, ये भैया ये समाज के लिए बातें बहुत ज़रूरी हैं, बहुत अहम जो हैं और हम सब के लिए ही हैं। अब देखो कोई बीमार हो गया ना, अगर खून तो नहीं चाहिए, पूछने वाले कई आ जाएंगे गली मोहल्ले में से, रिश्तेदारों का ब्लड चाहिए। अगर पानी की कमी आ गई तो पानी नहीं कोई भी पूछने आने का। हमारे बैंक बैलेंस, हमारी ज़मीन जायदाद, हमारी एफडियाँ सब तरह की दिलाई रह जाएगी, पानी नहीं आने वाली जनरेशन को पीने के लिए पानी ही नहीं मिलेगा। तो हम कितना पानी वेस्ट करते हैं, यूज कम करते हैं, मिस यूज ज़्यादा करते हैं, प्रयोग कम करते हैं, उसका दुरुपयोग ज़्यादा करते हैं। तो हम मान लो इस कमरे में से बाहर चले गए, क्लास लगी हुई है तो लाइटें पंखे चल रही हैं, तो बिजली किससे बन रही है, पानी से बन रही है। गाड़ियाँ धोते हैं प्रेशर लगा के, मोटर लगा के, पाइप लगा के, फिर जब तक उसको सर्फ साबुन लगाते हैं तब तक वो पानी चल रहा होता है, तब तक चल रहा होता है। कई टूटियाँ पर उसके ऊपर वो टैप ही नहीं लगी होती, चल रही हैं। स्कूल के अंदर पानी को चलाते हैं अपना करते नहीं, स्कूल जाने, स्कूल का प्रशासन जाने, पियोन जाने, तो बेटा सॉरी, वेरी सॉरी। अगर आप स्कूल से घर, घर से स्कूल या ट्यूशन पे या गली मोहल्ले में कहीं कोई टैप कई बार गलती से खुली रह भी सकती है किसी से, तो आप प्लीज़ अच्छी बात है कि उस टैप को बंद कर दें। जरूरी नहीं कि देश सेवा वही है कि सीमा पे जाके आप आपके हाथ में राइफलें पकड़ा दें कि वो फौजी लोग हैं वो देश सेवा कर रहे हैं। मुबारक है, उनको भी सल्यूट करते हैं, वो भी बहुत महान सेवा है। लेकिन ये भी बेटा आप समाज में रह के ये भी सेवा निभा सकते हो। मैं तो अक्सर ये बात कहता हूँ कि जो ये बगीचा होता है
खेत है उसको बाड़ लगाई जाती है। बाड़ किसी को पता है ना, हैजी में कांटेदार तार लगाई जाती है। क्यों लगाई जाती है? क्योंकि कोई जानवर आके उसका नुकसान ना कर दे, चाहे उसके अंदर फल लगे हैं, चाहे सब्जियां लगी हैं, चाहे कुछ भी फसल लगी है, ताकि उसको खराब ना कर दें। रोकें और टोकें। जो टीचर या पेरेंट्स आपको किसी काम के लिए रोकते हैं या टोकते हैं तो ये बाड़ लगानी है कि इस बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचे। रोकना और टोकना कोई हमारी बेटा मजबूरी नहीं, हम अपना नैतिक कर्तव्य समझते हैं कि बच्चे हमारे हैं। जब आप स्कूल के अंदर आपको दाखिल करवाया, आपकी उंगली पकड़ के यहाँ पर स्कूल में लेके आए तो ये कह दिया कि आज के बाद माँ बाप आप हो, टीचर्स को कह दिया। तो क्या टीचर्स को आपको झिड़कने का हक नहीं है? अगर वो घर में अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को झिड़क सकते हैं तो आप भी उनके बच्चे हों, क्योंकि आपके पेरेंट्स ने उनको जिम्मेवारी दे दिया है कि स्कूल में आप माँ बाप का आपने रोल अदा करना है। आपको लिए कॉपी किताब के लिए जो सड़क पे जा रहा है उसकी कॉपी चेक कर सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं तेरी बुक कहाँ है, उसको पूछ सकते हैं तू कल क्यों नहीं आया, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेवारी है। आपके पेरेंट्स ने टीचर्स को जिम्मेवारी दी है, आपको झिड़क सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं। तो बेटा जब कोई टीचर या पेरेंट्स आपको रोकें या टोकें तो आपने बुरा नहीं मानना, आपने ये सोचना कि हमारी भलाई के लिए है, हमारे फायदे के लिए है, कि हम खुश नसीब हैं, कि हम खुश किस्मत हैं कि हमें कोई रोकने टोकने वाला है, हमें कोई कुछ कहने वाला, अगर हम कोई गलत काम कर रहे हैं तो हमें कोई रोकने टोकने वाला है। अब छोटा बच्चा होता है, बार बार आग की तरफ जाता है या बार बार पानी के उसमें टब में जाने देता है, तो माँ बाप उसको रोकते नहीं रोकते हैं ना। उसको पता कि तेरे बच्चे, तेरी भलाई वहाँ जाने में नहीं है। तो पेरेंट्स को पता है, टीचर्स को पता है कि आपकी भलाई कहाँ पर है। तो आपने बेटा कहीं अच्छा कोई मौका है तो आप पेड़ पौधा कहीं ज़रूर लगाएं, तो अपना अच्छी बातें सीखें, अच्छे संस्कारी जीवन जिएं, ठीक है। अच्छी क्वालिफिकेशन लेना अच्छी बात है, लेकिन वो क्वालिफिकेशन का मतलब बेटा डिग्रियाँ, क्वालिफिकेशन का मतलब डिग्रियाँ, ठीक है ना। आप BA BEd हो गए, MA BEd हो गए, MBA कर ली, MCA कर ली, MTech कर ली, ठीक है। आप MBBS हो गए, कुछ भी आपने और डिग्रियाँ ले ली हैं, वो क्वालिफिकेशन है, लेकिन वेल एजुकेटेड भी होना है, वो शिक्षा भी लेनी है जो आपको घर में माँ बाप देते हैं, तो स्कूल के अंदर जो टीचर्स देते हैं, लेसन पढ़ाते पढ़ाते गाहे बगाहे जो अच्छी बातें, जो संतों महापुरुषों की प्रेरणादायक गाथा सुना के, संतों महापुरुषों की, देशभक्तों की, कमाल की बात है। भगत सिंह की बात कर लो आप, उधम सिंह की बात कर लो, करतार सिंह सराभा 19.5 साल की उम्र के अंदर फांसी के फंदे पे चूम गया, कमाल है। 19.5 साल की में 23-24 साल की उम्र, एक शादी करवाने की उम्र होती है, तो और एक माँ बाप के अंदर एक अरमान होते हैं कि मैं बच्चे की शादी कराऊंगा, और भगत सिंह 23-24 साल की उम्र के अंदर फांसी के फंदे को चूम रहा है, कमाल है। करतार सिंह सराभा 21 साल तक सीने के अंदर उन देशवासियों का दर्द छिपा के बैठा है, तो 21 साल के अंदर लंदन के अंदर उन्हीं के घर जाके अंग्रेज उसको डिवाइड को मार दिया। तो कमाल है बेटा। इन देशभक्तों को सलाम करो, इनसे जो है प्रेरणा लो, इनके प्रेरणा लो। घर के अंदर अच्छी बुक्स रखो, एक अच्छा स्टॉक रखो बेटा, अच्छी उल जुलूल की किताबें की बजाय अगर किसी फेस्टिवल पे, कोई दशहरे दिवाली पे, होली पे अगर आपको कोई जेब खर्ची मिलती है, पैसे मिलते हैं आपको, तो उनके आप पैसे बचा के अच्छी संतों महापुरुषों की जनरल नॉलेज की बुक्स बेटा, चाहे वो लूसेंट की है, चाहे कोई भी है, हरियाणा जीके है, या और कोई इंग्लिश ग्रामर की बुक है, हिंदी ग्रामर बुक है, कोई और जीके की बुक्स जो आपके लिए यूजफुल हो। आज हम महसूस कर रहे हैं कि पढ़ाई का जो पढ़ने का रुचि कम हो रही है, इंटरेस्ट कम हो रहा है। हमारे घर के अंदर अच्छे अच्छे LED आ जाएंगे, अच्छे अच्छे सोफा सेट आ जाएंगे, बढ़िया बेड आ जाएंगे। 500-700 साल हो गए बेड को, इतने ये 48 इंची, अब 56 इंची चाहिए, अब 60 इंची LED चाहिए, वो सारी बदला जाए, वो सारा सामान आ जाएगा, लेकिन 200-400-500 हज़ार की 2000 की किताबें नहीं मिलने की, बढ़िया किताबें पढ़ने के लिए घरों में से लाइब्रेरी खत्म हो रही है। चाहे वो संत महापुरुषों की जीवनियाँ हैं, भक्तों की, देशभक्तों की जीवनियाँ हैं, जो क्रांतिकारी, जो देश के मतवाले, देश के परवाने, जिन्होंने अपना हंस के फांसी के फंदे को चूम लिया, तो उन लोगों की जीवनियाँ पढ़ें, उनसे हमें प्रेरणा मिलती है, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कमाल है, वो कैसा जीवन होगा उनका, वो भी किसी माँ बाप की औलाद होंगे, वो भी किसी माँ बाप के बच्चे होंगे,
तो हमारे जैसे ही होंगे, उनके भी अरमान होंगे उनके माँ बाप के। तो कमाल है, उन्होंने देश के लिए हंस के अपने आप को कुर्बान कर दिया। तो ये बेटा इन चीज़ों पड़े हमारे अंदर बड़ा कुछ, हमारे गंदगी जाएगी, हमारे गंदे विचार बाहर से जाएंगे। अच्छे फ्रेंड सर्कल बनाओ, अच्छा फ्रेंड सर्कल बेटा, अच्छा फ्रेंड सर्कल, चाहे वो लड़कियां हैं चाहे वो लड़के हैं। तो इससे आपको बहुत, ये तभी जो मैं कहता हूँ ये सत्संगत है। सत्संगत का मतलब जहाँ पर अच्छे गुणों की बातचीत हो, चर्चा हो, वो सत्संगत है। चाहे आप घर में बेडरूम में आप 2-4 फ्रेंड्स बैठे हो, पढ़ाई की डिस्कशन कर रहे हो, अच्छी बातों पे विचार विमर्श कर रहे हो, तो वो क्या चीज़ है? सत्संगत है, वो साध संगत है। साध का मतलब वही नहीं जो चोला पा के आ गया, वो साध संग है। साध संग का मतलब, साधु का मतलब ही अच्छे गुणों की संगत है बेटा। तो शायद मैं आपका समय ज़्यादा ले गया हूँगा, तो ब्लैक बोर्ड होता और बढ़िया तरीके से बात होती। फिर भी मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने बात को ध्यान से सुना है। तो आप पानी बचाएं, पेड़ पौधा लगाएं, अपने माता पिता की जो है, जो आपका उनका एक विश्वास को जो है वो ख़त्म ना होने दें, उनको विश्वास जो है उनका कायम रहने दें। अच्छे तरीके से पढ़ें, मेहनत करें, टाइम मैनेजमेंट बेटा वो ज़रूर रखें। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है बेटा। हम अक्सर कहानियाँ बनाते हैं, अच्छा अभी तो रेस्ट ही करना है, अभी तो पेपर ख़त्म हुए थे, अभी तो 9वीं क्लास के अंदर आए हैं, पढ़ लेंगे, कोई नहीं, कोई बात नहीं, कर लेंगे, समर वेकेशन गर्मी की छुट्टियों के बाद पढ़ लेंगे, वो हो बस, फिर बरसातें शुरू के, फिर उसके बाद ना बस ईद तो दशहरा दिवाली की है, इसके बाद अब पढ़ना शुरू कर देना, टाइम टेबल बना लूँगा, ये कर लूँगा वो कर लूँगा। दशहरा दिवाली आ गई, ना फिर ठंड ज़्यादा होगी, फिर तो विंटर वेकेशन आ गई, सर्दी की छुट्टियों के बाद बस पहली जनवरी को तो मैं पढ़ना शुरू कर देना, ये कर दूँगा, धरती ऊपर आसमान नीचे कर दूँगा, ये कर दूँगा। फिर वो 1 जनवरी भी गई, फिर वही बात, फिर साल ख़त्म, फिर डेट शीट आ गई, पेपर है, एनुअल एग्ज़ाम। ओहो, सारा साल सोचते ही रह गया, करे कुछ भी नहीं। वो कल से अलार्म लगा देना है, कल से सवेरे जरूर उठना है, जिस तरीके से आपके माता पिता को चिंता है, माँ को चिंता है कि सवेरे इसको नाश्ता तैयार करके देना है, लंच भी चाहिए, डिनर चाहिए, इसको कपड़े चाहिए, ये चीज़ें चाहिए। बाप को चिंता है कि मेरी जेब में पैसे हैं या नहीं, चाहे मैं पड़ोसियों से उधार लेके दूँ, इसकी फीस देनी है, टाइम पे देनी है, इसकी बुक्स देनी है, इनको चिंता है। तो आपको भी चिंता होनी चाहिए, ओके बेटा, थैंक्स ऑल ऑफ यू। मेरे बहुत ही सम्मान और श्रद्धा के योग्य मंच पर बैठे हुए सरदार गोविंद सिंह भाटिया, सरदार हरदेव सिंह जी, जो अपनी श्रीमती जी के साथ आए हुए हैं, मैडम डॉक्टर हैं, और मैं तो कहूँगा कि सम्मान ही बल्कि मेरी श्रद्धा के पात्र प्रिंसिपल महोदय, टीचर्स, और मेरे अपने भाई बहनों की तरह पेरेंट्स, और मेरे ही पोता पोतियों, दोता दोतियों के रूप में प्यारे बच्चों, और पत्रकार महोदय जो पब्लिक की आवाज़ हैं, जो भी इस गोष्ठी में सहायक हैं, मैं उन सबको प्रणाम करता हूं, और मिट्टी को प्रणाम करता हूं जहाँ लोगों के चरण लगते हैं, क्योंकि ये प्यारे बच्चों बहुत संजीवनी है। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने सबसे पहले प्रथम मेडिकल साइंस की जो बारीकियों को मैं भी 83 साल की उम्र में उन शब्दों को सुना मात्र था, लेकिन उन्होंने उनकी बारीकियों को बड़े सूक्ष्म तरीके से सरल भाव से आप तक पहुंचाया, मैं उनका धन्यवाद देता हूं। उसके बाद जो ज्ञान की गंगा नहीं बल्कि जीवन की गंगा बहाई है, सरदार भाटिया साहब ने, वो कोई शाब्दिक बातें नहीं थी, उनका अपना जीवन बोलता है। वो मेरे बच्चे की तरह है। मैं जब 80 में रिटायर हुआ 1980 में, ये स्कूल चलाते थे वहाँ पर सढौरा में। इनके साथ एक और विद्यार्थी थे जो आज BO हैं छछरौली के। मेरी बहन भी नमिता कौशिक यहाँ DO रही है यमुनानगर में।
तो कहने का भाव ये है कि मैं इस लाइन में आने का सौभाग्य आपकी वजह से पाया है। तो प्यारे बच्चों, जय श्रीमान जी ने आपके समय को कुरेदा है, आपके हृदय को जगाने की कोशिश की है। तो उसका प्यारे बच्चों मेरे ख्याल में इस काउंसलिंग का कोई, अगर इसका मूल्य लगाया जाए तो अमूल्य था ये, क्योंकि हम सब बियॉन्ड इकोनॉमिकल रिपेयर हैं। लेकिन ये जो वर्कशॉप है हमको उस हालत से भी सक्रिय करती है। श्रीमान जी ने वर्कशॉप का नाम दिया, श्रीमान जी ने मंदिर का नाम दिया, श्रीमान जी ने मस्जिद का, गुरुद्वारे का, चर्च का, और पता नहीं कितने कितने वैज्ञानिकों के नाम लेकर, कितने कितने संतों के नाम लेकर के हमारी सुप्त अवस्था से हमें मृत्यु से जीवन की ओर ले जाने का काम किया। मैं तो ये कहूँगा आज मेरा बड़ा सौभाग्य है कि पेरेंट्स भी हैं और उनकी संतानें भी हैं, उनके गुरुजन भी हैं, मैं भी आपका बाबा नाना के तौर पर हूँ। तो एक इतना बड़ा सत्संग की बात भी बताई है कि सत्संग केवल अलंकारों से नहीं होता, कर्तव्यों से होता है, क्रियाओं से होता है। तो मैं भी इसमें कुछ सीख रहा हूँ आपके विद्यालय में, जहाँ गुरुचरण लगते हैं। और वाकई में ग्रामीण अंचल का ये एक ऐसा मंदिर है जो हमारे लाहौर में कभी हुआ करते थे, जो आज पाकिस्तान में है, वो पंजाब की राजधानी हुआ करता था। 1870 में पहला खालसा हाई स्कूल वहाँ खुला। हमारे देश में स्कूल ही नहीं थे। थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज पूरी एशिया में एक ही था, रुड़की में। आज हमारा दून विद्यालय, जहाँ देहरादून में अभी श्रीमान जी नेशनल डिफेंस एकेडमी की बात कर रहे थे, उसमें +2 के बच्चे भी जा सकते हैं, ऐसी कोचिंग पा सकते हैं। कितने मिलिट्री स्कूल खुल गए हैं, कितने नवोदय विद्यालय खुल गए हैं। आज हमारा देश एजुकेशन हब है। लेकिन ये सब कुछ होकर भी हम कहाँ जा रहे हैं? पेरेंट्स की उदासीनता, बच्चों की शिथिलता, उस सब के ऊपर प्रकाश डाला गया है। तो बच्चे थोड़ा बोर ना हो गए हों, एक स्लोगन का हम उच्चारण करेंगे, सब बच्चे मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। क्योंकि ये जो बैठे हैं स्टेज पर, जब आपके माता पिता इनके सामने बैठे हैं, ये सब एक ही फैकल्टी है प्यारे बच्चों। गुरुजन और माता, सबसे पहले तो गुरु मदर ही होती है, जो प्रसव वेदना के समय सर पर कफन बांध करके हमें दुनिया का दान देती है। हमारा अस्तित्व उनकी वजह से है। भगवान को किसी ने देखा नहीं है। मैन हैज टू लिव इन रिलेशन। पहला संबंध माता से अगर नहीं है, कोई बच्चा आगे नहीं बढ़ता। मैन हैज टू लिव इन रिलेशन, कट ऑफ फ्रॉम रिलेशन ही वुड विदर अवे एंड डाई। अगर पेड़ से टहनी टूट गई, पहले मुरझाएगी, विदर अवे एंड डाई, मर जाएगी। हम भी तो ऐसे ही हैं। आज मोबाइल का नाम आया, मोबाइल खराब थोड़ी है। ग्राम बेल, फोन के दाता, जनसंचार के भाग्य विदाता। ये तो इतनी बड़ी संजीवनी है, हम मुर्दों में जान डालने वाली चीज़ है मोबाइल। लेकिन हमने इसका सदुपयोग की बजाय इसका दुरुपयोग की तरफ ज़्यादा ध्यान है। प्यारे बच्चों, आपका लीवर डाइजेस्ट सिस्टम का राजा है। अगर वो काम ना करे तो आप चाहे डेली अंगूर खाओ, क्या प्रोटोप्लाज्मा बन जाएगा? हेमोग्लोबिन बन जाएगा? क्या नाखून से लेकर शिखर तक ऊर्जा मिल जाएगी? इम्पॉसिबल। इस तरह प्यारे बच्चों, आपके लाइफ लाइन में अध्यापक टर्निंग पॉइंट है, पैरामाउंट है। पैरामाउंट का मतलब एवरेस्ट नहीं है। एवरेस्ट को विजय करने वाला कॉन्करर मिस्टर तेंजिंग सुसाइडेड हिमसेल्फ। आज भी बच्चे सुसाइड कर रहे हैं हॉस्टलों में। तो इसलिए प्यारे बच्चों, आपकी पढ़ाई लिखाई में ईगो नहीं आनी चाहिए। यू आर नॉट मोर देन बेनिफैक्टर्स ऑफ योर पेरेंट्स। अभी तो मुफ्त का माल पीड़ा जा रहा है प्यारे बच्चों। जब एक परोठा खाओगे 50 रुपए में आता है, एक एक कपड़ा, एक एक जूता, आपकी किताबें
और उन किताबों के पीछे कितने ऑथर्स, राइटर्स, पब्लिशर, कितने पेपर मिल में गरीब से गरीब मजदूर काम कर रहे हैं, जिनके बच्चों को ज़मीन पर सोना पड़ता है। इसलिए प्यारे बच्चों, टू बी राइटली एजुकेटेड यू हैव टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। नहीं तो तुम अनपढ़ से भी, पशुओं से भी नीचे हो। टू बी राइटली एजुकेटेड यू हैव टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। यू हैव टू कीप ऑन लर्निंग अबाउट योर सेल्फ। When you stop the learning, life becomes ugly and sorrowful। वही आज हम देख रहे हैं। जितनी विद्यार्थी की लाइन आज गंदी है ना, किसे कहते हैं अगली? संडास की बदतर बदबू से भी नीचे वातावरण को कहते हैं अगली। अगली किसी थोबड़े वाले को नहीं कहते। इब्राहिम लिंकन, उसके मुंह पर सारे माता के दाग थे। ही वॉज ओनली ए कारपेंटर सन, एक बढ़ई का पुत्र था। लाइट में नहीं थी पढ़ने के लिए। और वो ही वॉज द 16th प्रेसिडेंट ऑफ USA, जो आज वर्ल्ड का सबसे पावरफुल देश है। उसका राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य लिया। लाल बहादुर शास्त्री सिर पर किताबें बांध कर गंगा को तैर कर पास करते थे। यहाँ बस्ता बांध लेते थे। ये प्यारे बच्चों, प्रेरणा तो बहुत हैं। श्रीमान जी का हृदय झुक झुक कर जा रहा था आपके चरणों में। शिक्षाविद हैं। ही इज़ द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ खदरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो इसलिए प्यारे बच्चों, यू आर द एंजल्स। तुम देव तुल्य हो बेटे कब? जब प्यारे बच्चों पहला मैन हैज़ टू लिव, पहली माँ के साथ संबंध हो। मेरी माता जन्मदाता तुम ही से है ज़िंदगी मेरी, तुम ही हो रक्षक सदा मेरी, तुम ही हो पुश्ते। ये कितनी बेटियां बैठी, क्या भूहत्या नहीं कर सकती थी इनकी? 2 करोड़ बेटियों की है माताओं ने। तो आपकी मदर कैसी मदर मिली प्यारे बच्चों आपको, कि अपनी बेटियों को पैदा ही नहीं किया, उनको पाला है। इसलिए माता का देव रूप जन्मदाता, पालन करता, रक्षा करता, शिक्षा दाता, ये 4 डायमेंशन ऑफ लाइफ। अगर इसमें तीनों बातें ना लगाएं, सॉरी, थैंक यू, प्लीज़ ना लगाएं माँ के साथ। एक माँ कितने अच्छे अच्छे व्यंजन बना कर देती है, कभी थैंक यू कहते हो? वर्षों वर्ष अच्छे अच्छे व्यंजन दिए, एक दिन माँ ने कहा भी कभी थैंक यू कहते नहीं बच्चे। घास रख दिया, हरा हरा घास, पशु खा के दूध देता है उसको। बच्चे कहते हो माँ ये क्या है, ये क्या है? अच्छा तुम्हारी आंखें भी है, तुम्हारी आंखें भी है। अरे इतने दिन मैं खाना खिला रही हूँ, इतनी कितनी डिश बना कर देती हूँ। मेरी बच्ची आएगी भी, मेरा बेटा आएगा भी, उसको क्या नाम, लौकी के कोफ्ते बहुत अच्छे लगते हैं, उसको दही में बड़े अच्छे लगते हैं, उसको आलू के चिप्स बड़े अच्छे लगते हैं, उसको खीर बड़ी अच्छी लगती है। हम क्या कभी सोचते हैं मेरी माँ को क्या अच्छा लगता है, मेरे बाप को क्या अच्छा लगता है, जो सारा दिन घास उखाड़ता है खेत में, भैंसों को ऊपर उठाता है। कभी दादी नानी का पता है, कभी हैप्पी बर्थडे कहने को दिल करता है नानी जी को, जो माताओं की मातेश्वरी है। मैडम अभी याद करी थी अपने पापा को, बैठी प्रिंसिपल साहब के रूम में, कि हमारी पेरेंट्स ने हमें कभी नहीं कहा हमारी लाइबिलिटी क्या है। ये किले, ये पॉपुलर प्लांट्स, ये गन्ने की ट्रेलियाँ और शराबे की बोतलें आ रही घरों में, बीड़ियाँ सिगरेटें आ रही हैं, नशा आ रहा है। अरे कम से कम मांसाहार, नशे, चोरी, जुआ, बदयांती, व्यभिचार, रिश्वत, हिंसा छोड़ दो। नो नीड ऑफ जुडिशरी, नो नीड ऑफ पुलिस, नो नीड ऑफ मिलिट्री थ्रू आउट वर्ल्ड। इसलिए आज पेरेंट्स का भी दिन है कुछ सीखने का। पेरेंट्स तो कितने कुत्ते बिल्ले हैं, कितने और पक्षी हैं, क्या वो अपने बच्चों को प्यार नहीं करते? प्यार करना काफ़ी नहीं है, प्यार करना काफ़ी नहीं, जन्म देना काफ़ी नहीं है, पढ़ाना काफ़ी नहीं है। संस्कार कौन देगा उन्हें? अध्यापक का सम्मान कैसे करना है, पड़ोसियों का कैसे सम्मान करना है, मामा जी को कैसे, मामा जी माँ जैसा, माँ डबल आता है, नाना करते भी प्यार हो गया, नाना जी ऐसे होते हैं, अपने पोतों से ज़्यादा दोतों को प्यार करते हैं। तो प्यारे बच्चों, समाज में संबंध सबसे पहला शिक्षा है।
अगर मेरी टांग से मैं ना हो तो लंगड़ा कहलाता हूँ, मेरा हाथ ना हो तो मैं टूंडा कहलाता हूँ, मेरे कान ना हो तो मैं बोला कहलाता हूँ, मेरे आँखें ना हो तो मैं अंधा कहलाता हूँ, मेरे बाल ना हो, देखो बार्ड हेड गंजा। तो संबंध में ही हम धार्मिक है, संबंधों में अधार्मिक है, संबंधों में हम शिक्षित हैं, संबंधों में अशिक्षित हैं। टू बी राइटली एजुकेटेड यू हैव टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, यू हैव टू कीप ऑन लर्निंग। तुम्हें शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, सीखने पर। शिक्षा तो एक भी नहीं है, मिलियन ट्रिलियन मोर स्कूल्स एंड कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, सीखने वाला तो एक भी नहीं। डिग्रियां हैं, अभी श्रीमान जी कह तो रहे थे, डिग्रियों से नहीं काम चलेगा भाई, एनवायरनमेंट से काम चलेगा प्यारे बच्चों, अवेयरनेस से काम चलेगा। मेरी माता जन्मदाता, अगर माता पृथ्वी है तो पिता आकाश है। रात को हारा थका एक बाप आता है, सोने की कोशिश करता है, ये जी सो गए। जब बच्चे सो जाते हैं, जब माता जी बात करती है पिता जी से, आजकल तो लिव इन रिलेशन देख लो, फिर आफ्ताब कितने टुकड़े करता है। अगर आप लोग अपनी मर्जी से चलाओगे ना कि सब कुछ हमारी मर्जी से चलेगा, तो फिर देख लो क्या हाल होता है। डेली हो रहा है। स्वेच्छाचारिता पाप है, अधर्म है। स्वेच्छाचारिता मैंने मनमुखी चाल। यू हैव टू अंडर डिसिप्लिन, DISCIPLINE, इसको आप एक अल्फ़ाबेट का आप वो निकालो मैथमेटिक्स के अनुसार मान, तो 100 निकलता है। देख लेना लिख करके, ये D = 4, ABCD, आगे ही ले लो 9, ऐसे सब का मान निकालना 100 निकलता है। तो डिसिप्लिन घर में भी ज़रूरी है। पति आने वाला है, घर में पोटी पड़ी है, बच्चे रो रहे हैं, किसी का सिड़क निकल रहा है, और सवेरे शाम तक गोबर के कपड़े भरे पड़े हैं, तो पति ठहरा है घर में, कहीं ठेके पर जाएगा, बैड एलिमेंट्स के पास बैठेगा। इसलिए जो घर में पत्नियां ऐसी होती हैं लापरवाह, उनके पति नशेड़ी होते हैं, गजेड़ी होते हैं, भंगेड़ी होते हैं। इसलिए घर का वातावरण बहुत सुंदर बनाना चाहिए। घर में फूल भी लगाने चाहिए। श्रीमान जी पौधों की बात कर रहे थे, गमलों में फूल भी लगाए, पानी की बात कर रहे थे। तो प्यारे बच्चों, शिक्षा ये नहीं है प्यारे बच्चों। तो आओ थोड़ा सा अपने आप को गर्म करें। सब बच्चे मेरे पीछे पीछे गाएंगे, और ईमानदारी से गाएंगे, वफादारी से गाएंगे, दयानतदारी से गाएंगे। श्रीमान जी को मैं वर्षों से जानता हूँ, चौहान साहब को, कितने स्कूलों में मुझे मिले हैं। मैं तो देख करके मेरी बातें खुल गई। चौहान साहब, आप यहाँ, कितना सौभाग्य है आपके स्कूल का कि ऐसे शिक्षाविद, और कितने शिक्षाविद आपके लिए व्याकुलता का, आकुलता का, कुलाहट का, व्यग्रता का, तत्परता का, उत्कंठा के भाषण देने के लिए थोड़ी आए हम यहाँ। जब ओले पड़ रहे, जब बारिश चली, जब मैं अपने घर से चला, श्रीमान जी मेरी वेट कर रहे जगाधरी में। मैंने कहा श्रीमान जी मैं सीधा जो है बिलासपुर पहुंच रहा हूं, मुझे बिलासपुर की सवारी मिल गई। आते हरदेव सिंह साहब को टेलीफोन किया, वो अपने घर से आए, मुझे पत्रकार महोदय के पीछे बैठाया, खड़े हैं आपके लिए। तो श्रीमान जी, इन सब का आप आंखों से नहीं नजर आता प्यारे बच्चों। ये झील सी आंखें, ये सुराहीदार गर्दन, ये मोती से दांत, ये तीर कमान सी कमर। मैं भी, आई एम आल्सो रिटायर्ड सूबेदार। व्हेन आई वाज एनरोल्ड इन द आर्मी, आई वाज 62 kg इन वेट इन 18 ईयर्स। आज मैं कमरा लिए बैठा हूँ, मेरी कमर हिलती ही नहीं। तो यू विल बी कन्वर्ट लाइक मी। मैं कर्ज नहीं दे रहा हूँ। चेंज ऑफ लाइन द नेचर तुम पढ़ते हो नॉन मेडिकल में। मेडिकल में तो पहले जमाने में पढ़ाया जाता है कि परिवर्तन का नियम है, और परिवर्तन के नियम के 2 ही फैक्टर हैं प्यारे बच्चों, विकास और विनाश। जो बच्चे विकास के साथ जुड़ेंगे विकसित हो जाएंगे, जो बच्चे विनाश के साथ जुड़ेंगे विनष्ट हो जाएंगे, डायनासोर की तरह। इट्स ए रियल फैक्ट। तो प्यारे बच्चों, ठीक है, मीठी मीठी बातें करना अच्छी बात है। मैंने एंजल्स भी कहा आपको कि आप देवदूत हैं, लाइफ लाइन ऑफ द नेशन, नॉट नेशन, यू आर लाइफ लाइन ऑफ ह्यूमैनिटी। ये वर्ल्ड वार कौन करवा रहा है? बच्चे तो करवा रहे हैं। क्या वो पुतिन का भी बच्चा नहीं था? जेलेंस्की बच्चा नहीं था? लेकिन उसको स्कूल से और माता पिता से वो दान नहीं मिला। आज वर्ल्ड वार की तैयारी हो रही, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, थर्ड वर्ल्ड वार। क्यों नहीं? क्योंकि वो शिक्षा नहीं है, वो बाल भाव विकास नहीं है,
इसलिए बच्चों आप रोक सकते हो थर्ड वर्ल्ड वार को। ये माता पिता रुकवा सकते हैं अगर अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें कि घृणा नहीं करेंगे, ईर्ष्या नहीं करेंगे, द्वेष नहीं करेंगे, अहंकार नहीं करेंगे, खलकामी नहीं बनेंगे। लड़के के साथ किसी और भाषा में बात करते हैं माता पिता और लड़की के साथ किसी और। मेरा एक पोता पोती है, वो BSc एग्रीकल्चर है, कहीं टूटी फूटी नौकरी करता है। तो सवेरे उसकी माँ कहेगी, ओ भाई दार काल गंदा, जो कि दूध उसने पीना, घी उसने खाना सबसे पहले, 8 बज गए, ओ भाई धार काल। और बेटी को होए खड़ी नहीं हुई अभी तक, स्कूल में जा। मतलब ये माँ बाप जो है संतुलन बना कर रखें। बेटियों के साथ किसी और प्रकार से बात करते हैं और बेटों जब वो खाड़कू बनते हैं, जब वो गुरवादी बनते हैं, जब लाठियाँ लगती हैं उनसे, फिर वकील के पास जाते हैं, जी मेरे बेटे ने मेरे लाठियाँ मारी हैं। तो वकील कहता, भाई कितना घी खिलाया था? अजी क्या बात करते हो, मैं तो उधारा ले लेके खिलाया घी इसको, च्यवनप्राश खिलाया इसको, ग्राई पाउडर पिलाया बचपन में, तो लाठियाँ भी खाओ इससे। संस्कार नहीं दिए माँ बाप ने, मास्टर की जान खाओ अपने आप, उनका काम है वो मास्टर संभालेंगे। मास्टर कहते हैं इनको, उनके सामने सम्मान से नहीं बोलते बच्चों के सामने। आज इसलिए गुरु का दर्जा कम होने से आपका दर्जा भी कम हो गया है, क्योंकि शिक्षा तो यहीं से मिलनी है। झूठ बोलना पाप है, आप झूठ बोलते हो, बच्चे कैसे नहीं बोले झूठ। कोई मजदूर पैसे मांगने आता है घर में, बेटे को कहते जा कह दे घर में है नहीं पिताजी, वो कहता पिताजी कह रहे हैं घर में है ही नहीं। तो कहाँ से शुरू हुई भाई? चैरिटी बिगेन्स एट होम या डेथ बिगेन्स एट होम। माताएं भी ऐसा करती हैं, पेचदार भाषा बोलते हैं माता पिता बच्चों के सामने, पेचदार सरलता की भाषा नहीं बोलते। पेचदार भाषा मतलब पटड़ी बिठा के चलना। साई सब संसार में मतलब का व्यवहार, तब लग पैसा पास में तब लगता को यार, पैसा रहे पास में यार संग संग डोले, पैसा रहे ना पास में यार मुख से भी न बोले। कहत गिरधर कबीराय यही जगत का लेखा, प्रीति करे बेगर्जी यार बिल नहीं देखा। तो ये शिक्षा प्यारे बच्चों बेगर्जी आए, इसमें निस्वार्थ आए, निष्काम आए, निर्दोष आए, निश्चल आए, निष्कपट आए, देन यू आर एजुकेटेड। नहीं तो ये भेड़ बकरियों की एक भीड़ आ रही है। जैसे वहाँ बरनाला में अभी पंजाब में हमला हुआ ना, किसने हमला किया? क्या ये शिक्षा दी हमारे गुरुओं ने? क्या कह रहा वो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी वहाँ पर, उसमें क्या नाम, राजस्थान में। इसलिए प्यारे बच्चों, हिंदू हो, मुसलमान हो, यहूदी हो या ईसाई, ब्रह्मो आर्य सिख का उचित सम्मान वाजिब है। जब जाकर हम इस देश को तरक्की कर सकते हैं, देश में रह सकते हैं, नहीं तो कहाँ जाएंगे भाई। तो ये तो प्यारे बच्चे थोड़ा सा भूमिका मात्र मैंने बोला है। आओ थोड़ा शिक्षा के बारे में थोड़ा सा, सब बच्चे मेरे पीछे गाएंगे, मैं भी जल्दी जान छोड़ूंगा आपकी, क्योंकि आप काफ़ी देर से झेल रहे हैं, हमें झेल रहे हो ना प्यारे बच्चों। तो भाई अगर झेलोगे तो प्यारे बच्चों, माँ बाप तो झेलते हैं, तुम्हें 5 साल तक तो तुम्हारी पोटी साफ करने जान नहीं छूटती, किलो किलो गंदगी उठा के फेंकते हैं वो, क्या याद आता है? तो सब बच्चे हाथ जोड़े प्यारे बच्चों। निराश इसलिए हो रहे हो कि आपकी मन मर्जी की बात नहीं बोली जा रही है। लड़कियां शादी होकर जाएंगी, क्या मेरी माँ जैसी मिल जाएगी सासू? वहाँ 100 साल जिए हमारी सासू जी, तुमने तो हमें जन्म दिया, न माँ ने तो हमें जन्म दिया, तुमने दिया प्यारा पिया, क्या बात तुम्हारी सासू जी। तो सारी बातें तुम्हारी मर्जी की बोली जाए, फिर तो तुम हैप्पी हो, क्योंकि इज दिस लाइफ, इज दिस एजुकेशन? फिर शराबी की बात शराबी के फेवर की बोलनी चाहिए, पियो बेटा तुम भी। तो माँ बाप को भी बच्चों से कभी बोतल नहीं मंगानी चाहिए, सिगरेट नहीं मंगानी चाहिए, बीड़ी नहीं मंगानी चाहिए, तम्बाकू नहीं मंगाना चाहिए, गालियाँ नहीं देनी चाहिए। घर का वातावरण भी बहुत गंदा है। हे प्यारी संतान हमारी, सदा तुम्हारा हो कल्याण, ये गाए माँ बाप। तुम अंश हो जीवन के हमरे लिए बहुत ही प्यारे, हमें सुख है हित में तुम्हारे, शुभ जीवन में शुभ अभिमान। हे प्यारी संतान हमारी, सदा तुम्हारा हो कल्याण। जिस जिस विध से हित आए अहित जाए, जीवन विकसित हो उसमें हमारा हृदय रत हो, इसी दिग जाए हमारा ध्यान। हे प्यारी संतान हमारी, सदा तुम्हारा हो कल्याण। उच्च भावों से हम संग जुड़कर
जीवन पथ में उन्नत होकर जाति कुल के भूषण बनकर उनका गौरव करो महान। तो क्या हम अपने माँ बाप का, दादा दादी का, नाना नानी का, जितने बच्चे सीख बैठे हैं, कड़ा कच्चा कृपाण कंग केस बैठे हैं, जिन्होंने 1704 ईस्वी में अभी बाल वीर दिवस मनाया गया है। बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, क्या आपको दाढ़ी मूछ आ रही है? उनको तो बिल्कुल ही बालक से, नन्हे से बालक क्या करके दिखा दिया। अभी श्रीमान जी ने भगत सिंह का, उधम सिंह का, राम प्रसाद बिस्मिल का, अशफाकुल्ला खान का, वीर सावरकर का, चापेकर का नाम लिया, दादू का, पलटू का, नामदेव का, चैतन्य का, सूर का, तुलसीदास का, गुरु नानक का नाम लिया अभी। तो क्या हम उनकी संतानें नहीं? क्या उनकी हेरिडिटी हमारे में नहीं है? क्या उनका डीएनए हमारे में नहीं है? लेकिन हम क्योंकि स्वेच्छाचारी है, इसलिए ये सारी बातें हमारे से ऊपर निकल जाती हैं। तो आओ थोड़ा अपना एनालिसिस करेंगे बाद में। हाथ जोड़े, अंतिम भेंट है, क्योंकि विषय बहुत बड़ा। मैं तो पहले विश्वविद्यालय में 2 बार आ चुका हूँ। पहले सिंह साहब थे यहाँ चेयरपर्सन, तो इसलिए जब श्रीमान जी ने कल नाम लिया दून मखज, वो मैं तो जानता हूँ उसको, दून विद्यालय को, कुराली के सामने है, क्योंकि सरस्वती स्कूल में आता हूँ, फिर यहाँ भी आता था। मेरे पास 15,000 विद्यालयों का परिवार है। श्रीमान जी फरमा रहे थे अभी 36 साल में 42 साल हो गए मुझे इसी काम पर एज ए ह्यूमैनिटेरियन डॉग बने हुए। भौंक भौंक के जगाता हूँ, कोई बच्चा जाग जाए, कोई बच्चा आइडियल बन जाए। ये टाइया बांधने से गलफांसी है, तो इससे कोई हमारा व्यक्तित्व नहीं बढ़ता। हमने पर्सनैलिटी बढ़ गई नहीं, पर जीवन से बढ़ेगी। जीवन बोलता है, जहाँ भी बोलता है, ईमानदारी, वफादारी, दयानतदारी बोलती है, सरलता बोलती है, प्यार का, सत्कार का, उपकार का, दया का, क्षमा का, शील का, तप का, त्याग का, संघर्ष का, संजीवनी मिलती है, अंतःकरण की शुद्धि बनती है, वैराग्य आता है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, विषय बहुत बड़ा है। तो मैं तो अंत में एक ये आपसे गीत गुआ के अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ, क्योंकि प्यारे बच्चों विषय बहुत रोने का है। जब श्रीमान जी बोल रहे थे तो माता पिता का जब नाम लिया तो प्यारे बच्चों मेरी आंखों में आंसू आ गए। कितना त्याग तपस्या करते हैं माँ बाप, और गालियाँ उनको मिलती है। जैसे हमारे जीभ गलती करती है ना, बोलती है, दांत टूटते हैं, वो दांत कहते हैं भाई तू देख के बोला कर, क्योंकि जब भी कोई तू गलत बोलती है तो मुक्का मेरे दांतों पर लगता है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, आप मेहरबानी करके इतना दान पाते हो माता पिता से, गुरु से, समाज से, पशुओं से, पौधों से, मिट्टी से, हवा से, रोशनी से, पानी से, फिर भी करते हो। फिर भी हैप्पी बर्थडे टू यू, फॉर व्हाट यू आर हैप्पी बर्थडे टू यू। जन्मदिन है मुबारक उनके जो काम आए और के। अब तो तुम काम ले रहे हो, आ कहाँ रहे हो? यहाँ माँ बाप गलती कर, पैदा हुआ नहीं बच्चा, पेट में जन्मदिन मनाया जा रहा है, यहाँ गलती कर रहे हैं माँ बाप, सिर पर चढ़ा रहे हैं उनको, पोटी साफ करनी पड़ रही है, हैप्पी बर्थडे टू यू। अपने आप अपनी पैर बैठ जा समाज। तो ये बंद करना चाहिए। नो नो बर्थडे मनाओ नाना जी का, गुरु जी का, ऐसे से लोगों का, डॉक्टर का, इंजीनियर का, एड्रेसर का मनाओ ना, जिसने बल्ब बनाया उसका तुम्हें पता ही नहीं। तो इसलिए प्यारे बच्चों, बहुत अंधकार में है। एजुकेशन एनलाइटमेंट करने के लिए है। तो आओ थोड़ा हाथ जोड़ेंगे बच्चे, मेहरबानी करें। शिक्षित हो ना हो जो संभव, अपने को पहचानेंगे, अपने प्रति शिक्षित रहकर शिक्षित नहीं कहलाएंगे। क्या है जीवन मेरा जो बदलता रात दिन, किस गति की दिग है जाता, इस तत्व को हम जानेंगे। शिक्षित हो ना हो जो संभव, अपने को पहचानेंगे, अपने प्रति शिक्षित रहकर शिक्षित नहीं कहलाएंगे। अपनी लोअर फीलिंग को, अपने नीचे रंगों को कम से कम 3 घंटे लिखने की जरूरत है डेली सवेरे। जब जाकर अकल की जाड़ को निकलेगी, दांत निकलते हैं, माँ बड़ी खुश होती है, यहाँ को सुहागा लगाती है, मेरे बच्चे के दांत निकल रहे हैं। ना कोई दांत नहीं निकल रहे। दांत निकले
अवेयरनेस का कि ये बोध मुझे पैदा हुआ। 3 घंटे अपने कमीनेपन दे, हमारे गांव की भाषा में, यहाँ की तुम्बी की भाषा में कहते हैं, तुम्बी के बच्चे पहले हमारे गांव में पढ़ने के लिए जाया करते थे। तो इसलिए प्यारे बच्चों, बहुत बड़ा सौभाग्य है आपका। शिक्षा कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं, तो मृत्यु से जीवन की ओर जाने वाली संजीवनी है। इसलिए क्या है जीवन मेरा, जो बदलता रात दिन, किस गति की दिग है जाता, इस तत्व को हम जानेंगे। तो इसलिए प्यारे बच्चों, हो ये जीवन नष्ट कब, कैसे बचे पाए विकास। बाप ने बैग लेकर दे दी है, अपना किला रहन कर दिया है, 4 बैठ रहे, 5 बैठ रहे, ऐसे जो हॉर्न लगा रखे हैं कि एक्सीडेंट हुए बिना नहीं रहता। कहाँ जा रहे हैं कोई पता नहीं, कितना पेट्रोल महंगा है, चाहे बाप को अपनी पगड़ी रखने पड़े किसी के पर। हम कह रहे हैं कि फीस मांग कर देते हैं पड़ोसियों से कि भाई अगले महीने मेरी पेंशन आ जाएगी, 250-2700 रुपये मिलते हैं। अभी दादी भी भीख मांगती है कि स्कूल में बच्चे को देनी है, तो मांग कर देते हैं। और आप कभी थैंक यू कहते हो? नो। तो इसलिए प्यारे बच्चों, हो ये जीवन नष्ट कब, कैसे बचे पाए विकास। सत्य जो इस विषय के इनकी शिक्षा पाएंगे, शिक्षित होना हो जो संभव, अपने को पहचानेंगे। शरीर क्या जीवन क्या, अभी मैडम बता रही थी डॉक्टर शरीर के बारे में। शरीर क्या जीवन क्या, इनका संबंध है क्या, मुख्य लक्ष्य और गौण क्या, इस तत्व को सन्मुख लाएंगे। शिक्षित होना हो जो संभव, अपने को पहचानेंगे। अपने प्रति अशिक्षित रहकर शिक्षित नहीं कहलाएंगे। जिससे हो जीवन की रक्षा, उच्च हो उसकी गति, पूर्ण हो लक्ष्य उसका, ऐसी इच्छा धारेंगे। शिक्षित होना हो जो संभव, अपने को पहचानेंगे। गुरु की ज्योति शक्ति पाकर मोक्ष हो पावे विकास। उनकी भक्ति करके सच्ची हम शिक्षित होना चाहेंगे। तो गुरु की भक्ति तो प्यारे बच्चों बहुत दूर है। वो तो भाई अंगद, भाई लैना जी की तरह अंगद देव जी बनना पड़ेगा, महाराज रामदास की तरह महाराज अमरदास जी के शिष्य बनना पड़ेगा। तो कम से कम माता पिता के भक्त बन जाओ। आज सब प्रतिज्ञा लेंगे प्यारे बच्चों। श्रद्धा भाजन मात पिताजी श्रद्धा भाव करे उपहार। I rejoice to think of you, my beloved parents, for the unbounded love and unconditional service you rendered to me. बिना किसी शर्त के हमें सेवा देते हैं और हम प्यारे बच्चों की सेवा को सार्थक करें। दिस इज द एम ऑफ एजुकेशन। तो इसलिए ये जीवन का भी एम यही है। इसलिए अगर मृत्यु से जीवन की ओर जाना, मृत्यु की तरफ तो हम जा ही रहे हैं प्यारे बच्चों, इसमें कोई दो राय नहीं। आज का युग मृत्यु की ओर जाने वाला युग है। असामयिक मृत्यु हम ग्रहण कर रहे हैं। इतने नशे बढ़ गए हैं, इतनी करना न पड़े, कुछ भी खा मिले, ढेर सारा इनाम। ये तो प्रकृति में रूल ही नहीं है। तो इसलिए सब बच्चे बोलेंगे, गुरु हो सदा तुम्हारी जय, तुम्हारा परम पुनीत हृदय, जगत में सबसे ऊंचा ध्येय, तुम हो महिमामय मंगलमय। तुम्हारे चरणों से ही हमारी सब प्रकार की नीचता हो जाएगी क्षय। आज हम सब की यही नम्र विनय। तो प्यारे बच्चों, मैं देखता हूँ कि इस शिक्षा से आपका संबंध नहीं। तो प्यारे बच्चों,
अभी जूही चावला का, माधुरी दीक्षित का, स्मिता सेन का, ऐश्वर्या राय का, आर्यन सिल्वैया का, हैगन का, फैगन का, राणा दत्ता का, युक्ता मुखा का, प्रियंका चोपड़ा का खोपड़ा आ जाए तो तुम्हारी बागें खिल जाती हैं। शाहरुख खान, सलमान खान के वो RR का क्या कौन सा गीत था अभी वो उसको नोबेल प्राइज़ मिल गया। इनको क्यों नहीं मिलता? गुरुओं को, माता पिता को क्यों नोबेल प्राइज़ देते हैं भाई? जो गागर में सागर भर दिया। तो इन शब्दों के साथ सब बच्चे जय हिंद। अरे कम से हिंद के लिए तो जान छोड़ा, मुफ्त खोरो। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू। आवाज़ नहीं। पहले आप पहले पर मिनट प्लीज लेकर नहीं जाना। जो भी आपके डाउट है वो कोशिश करो कि यहीं पर ही खत्म हो जाए, राइट। कोई भी आपको जहाँ जो से फील्ड्स में आपका इंटरेस्ट है, आप उसके अकॉर्डिंगली आप अपने क्वेरीज जो है नोट डाउन कर सकते हैं, राइट। ज़्यादातर +2 के बाद क्या है, +2 के बाद हम सब सोचते हैं कि हमें सिर्फ ग्रेजुएशन ही करनी है, जैसे BA है, BCom है, BSc है, BTech है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे अवसर रहते हैं हमारे पास, चाहे वो आर्ट, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स है चाहे, तो उसके लिए हमारे पास IT सेक्टर है, ITIs हैं और स्किल सेक्टर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब नई शिक्षा पद्धति लागू कर दी है 2 साल से। लगभग गवर्नमेंट स्कूलों से लेकर प्राइवेट स्कूल या इंस्टीट्यूशन तक हमारे पास जो स्टूडेंट्स ये नहीं चाहते कि हम सिंपल ग्रेजुएट ना होकर, एक सब्जेक्ट से ना होकर हम टेक्निकल ग्रेजुएट हैं, तो उसके लिए क्या है, हरियाणा की 4-5 या पूरे इंडिया में 15 से 20 यूनिवर्सिटी को ये काम दिया गया है, जिसको नाम दिया गया है BVOC का, बैचलर वोकेशनल कोर्सेज। नई शिक्षा नीति के अनुसार 1 साल का डिप्लोमा कहलाएगा। 1 साल का डिप्लोमा है, 2 साल की एडवांस डिप्लोमा है, 3 साल की डिग्री। जो फॉरेन एजुकेशन है वहाँ पे ये सिस्टम बहुत पुराने टाइम से चल रहा है। गवर्नमेंट ने इसी पद्धति को अब लागू किया है इंडिया में। आप +2 के बाद 3 साल लगा के 1 साल में अपना डिप्लोमा कंप्लीट कर सकते हो, 2 साल में एडवांस डिप्लोमा, उसके बाद आप जॉब कीजिए। आपको लगता है भी 3-4 साल का गैप आ गया और रेगुलर करना चाहते हैं, फिर लास्ट में आपको 3rd ईयर में फिर एडमिशन मिल जाएगा। ये नई शिक्षा नीति है अब इंडिया में। तो इसके बाद 3 साल लगाने के बाद आप 2 साल मास्टर्स में लगा सकते हो, और ये कोर्स वोकेशनल्स हैं। इसमें आपका वेल्डर है, फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, मेडिकल की सारी स्ट्रीम है, आपकी कॉमर्स की सारी स्ट्रीम है, आपकी नॉन मेडिकल की सारी स्ट्रीम है। तो रास्ता एक नहीं, बहुत सारे रास्ते हैं। और ऐसे ही जब आप ग्रेजुएट कंप्लीट करते हो, वो चाहे सिंपल है चाहे वोकेशनल है, ग्रेजुएट के बाद आपके पास ऑफर रहता है मास्टर्स का। मास्टर्स अगर आपने आर्ट से किया है ग्रेजुएशन, मेडिकल से किया है या नॉन मेडिकल से किया है, तो मास्टर्स के लिए आपके जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होते हैं उसमें से आप कोई भी सब्जेक्ट एक लेके मास्टर्स कर सकते हो। फिर उसके बाद रहता है एमफिल के बाद आपकी रहती है डॉक्टरेट यानी PhD। ये डॉक्टर वो नहीं होता जो सारे पेशेंट ही देखता है, जो एजुकेशन सेक्टर है इसमें भी PhD के बाद डॉक्टरेट होती है। और ये सेक्टर एजुकेशन के बाद ये नहीं भी आपने सिर्फ क्लर्क ही लगना है, इसमें आपके पास टीचर के भी ऑप्शन बनते हैं, क्लरिकल भी बनती हैं, साइंटिस्ट लेवल पे भी आप जा सकते हो, और इंजीनियरिंग लाइन भी आप ज्वाइन कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपने +1 में क्या चूज़ किया है, +2 में। और अब मैंने जितना बोला है इसमें से क्वेरी क्या है आपकी, ये मुझे बताओ पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेरी है किसी को? खड़ा होएगा, हाथ खड़ा करेगा। और स्ट्रीम के बारे में पूछना हो, कोई ये चाहता है भी मैं आर्ट लेके पीछे रह जाऊंगा या कॉमर्स लेके पीछे रह जाऊंगा। वैसे 2-3 लेक्चर हो चुके हैं इस चीज़ पर। अगर फिर भी डाउट है तो एक बार बोल ले जरूर। है कोई ऐसा? नहीं। इसके अलावा क्या है, हमारे पास ITI में बहुत सारी ट्रेड्स होती हैं, हर जगह है, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ITI ओपन है। ITI में बहुत सारे अवसर होते हैं, लेकिन एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, +1 या +2 जब आप पास करके निकलते हो, जैसे सर ने बताया भी NDA तो आप अप्लाई कर सकते हो +1 के साथ साथ या +2 के साथ साथ भी, लेकिन आपने बैचलर में अगर एडमिशन लेना है तो एक चीज़ याद रखना, अगर आपकी 10th +1 +2 बहुत बढ़िया है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, आगे एंट्रेंस टेस्ट खड़ा है हर जगह पे, आपने किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, इंडिया में लेना है या फॉरेन में लेना है,
तो आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा, चाहे वो मेडिकल सेक्टर है, चाहे कॉमर्स सेक्टर है, चाहे आर्ट सेक्टर है, और चाहे होटल इंडस्ट्री। होटल इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री है मेडिकल के अकॉर्डिंग ही। जैसे एक घर से लेकर, गांव से लेकर, शहर से लेकर एक मेडिकल का सेक्टर बनता है, वैसे ही होटल इंडस्ट्री बहुत बड़ा सेक्टर है अपने आप में। होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा है, डिग्री है, मास्टर्स है, कोई ज़रूरी नहीं कि आपने सारी करने के बाद जॉब मिलेगी। डिप्लोमे के बाद बहुत सारी जॉब्स हैं, डिग्री के बाद बहुत सारी जॉब्स हैं, इसके बाद प्रमोशन है। बहुत बच्चों की सोच रहती है कि इसमें सिर्फ वेटर ही बनते हैं, होटल में वेटर रह जाते हैं। नहीं, ये मत सोचना कभी भी। होटल इंडस्ट्री में वेटर से लेकर कुक, कुक से लेकर शेफ़, कॉन्टिनेंटल शेफ़, मैनेजर और ऊपर तक की पोस्ट हैं, जिसमें मंथली सैलरी, आप इंडिया लेवल की अगर बात करो तो कम से कम 1 लाख रुपए महीने तक की भी सैलरियाँ हैं इंडिया में। और इसका सेक्टर सिर्फ प्राइवेट ही नहीं है, गवर्नमेंट सेक्टर, पुलिस डिपार्टमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट, नेवी, मर्चेंट नेवी और जितने भी सेक्टर हैं, आपको पता है हर जगह स्टाफ है, हर जगह खाने वाले की ज़रूरत है। प्राइवेट सेक्टर है चाहे गवर्नमेंट सेक्टर है, तो दोनों जगह पे होटल इंडस्ट्री अपने आप में बहुत बड़ी है। जो बच्चे होटल मैनेजमेंट के डिप्लोमे करते हैं, डिग्री करते हैं, अपनी कमी में घर बैठे हैं, प्लेसमेंट की कोई कमी नहीं। आपके आसपास में कोई है तो मेरे से मिलवाएं, आप मेरे तक पहुंचाए, प्लेसमेंट हम देंगे उसको, फ्री ऑफ कॉस्ट है। गाइडेंस देनी है आपको, बहुत सारी जॉब है। होटल इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा सेक्टर है। अगर आप मेडिकल से भी लेके, कहीं कहते हैं कि +2 में मेडिकल करी, होटल इंडस्ट्री में कैसे एंट्री, नहीं। होटल इंडस्ट्री 5 स्टार 7 स्टार तक के जो होटल होते हैं, वहाँ पे डॉक्टर नर्सिज अपॉइंट की जाती हैं, तो वहाँ डिमांड बहुत बड़ी है। तो होटल इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा सेक्टर है, इंडिया से लेकर फ़ॉरेन तक। फ़ॉरेन में स्टार्टिंग सैलरी 2 लाख से स्टार्ट होती है कम से कम, जिसमें आपको एकोमोडेशन और फूड भी फ्री रहता है। और ये सऊदी से लेकर यूरोप, शेनेगन कंट्रीज़ तक, USA तक, कनाडा तक रहता है। और कोई ज़रूरी नहीं कि आपने IELTS-PT ही करके जाना है आपने, ये सिर्फ स्टडी वीज़े का एक मेथड है। पहले ये कारण क्या था इसका सबसे ज़्यादा प्रचार होने का IELTS-PT का, कि वर्क वीज़े में जो कंपनीज़ काम करी थी वो सही तरीके से काम नहीं कर पाई। लेकिन अब बहुत सारी कंपनी इस समय में गवर्नमेंट सिस्टम के अंडर आके, भारत में एक प्रोजेक्ट चल रहा है NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसके अंदर आपके हर ब्लॉक, हर डिस्ट्रिक्ट में स्किल सेंटर है। स्किल सेंटर के अंदर आपको स्किल्ड किया जाता है और उसके अंडर जाके आपको प्लेसमेंट कराई जा रही है। चाहे वो कॉमर्स का बच्चा है, चाहे वो टेक्निकल है, चाहे मेडिकल का है, चाहे नॉन मेडिकल का है, तो उसमें आपका कोई खर्चा तक की नहीं। यहाँ तक कि आपके लिए एयर टिकट, आपकी एम्बेसी फीस, आपकी वीज़ा फीस, आपका ट्रैवल इंश्योरेंस, ये 4-5 चीज़ें जो स्टडी वीज़ा पे आपका कई लाख रुपए का खर्चा आता है, वहीं वर्क वीज़ा पे आपके लिए वो फ्री है भारत सरकार की तरफ से। में आज की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, ये पहले नहीं था, आज की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है। मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगर आप वेबसाइट पे आज जाते हो, वहाँ आपको प्रॉपर गाइडलाइन मिलेगी कि आपने अगर फॉरेन में वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करना है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपका 1 रुपया नहीं लगना है। लेकिन वो डिपेंड तभी है अगर आपका बेस मजबूत है, आपकी +1 10th +1 +2 आपकी मजबूत है, फिर आप स्किल्ड कोर्स में आए हो, आपने वो सीखा है, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है और उसमें कोई कमी नहीं है, फिर आपके लिए जॉब ही जॉब है और सरकार आपको फ्री दे रही है फ़ॉरेन तक की जॉब। इंडिया नहीं, अकेले इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, फ़ॉरेन तक की जॉब है। इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है आपकी, वो बताएं मुझे। कोई क्वेरी नहीं है या सिर के ऊपर से जा रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? ऐसा तो नहीं है। कोई क्वेरी इससे रिलेटेड पर्ची बना के भेज सकते हो मैडम के पास। आपने कभी भी ये नहीं सोचना है कि मैं आर्ट्स से हूँ या नॉन मेडिकल से हूँ, मैं मेडिकल वालों से पीछे, ऐसा कभी नहीं सोचना है। अपने क्लास में, अपने स्कूल में बेटर काम करना है, जैसा सर ने भी पहले बोला है आपको, उस पर बहुत अच्छे तरीके से सेक्टर सारे भरे पड़े हैं, जॉब हद से ज़्यादा है। यहाँ तक कि अगर आर्ट का बच्चा चाहे ना मेडिकल में भी एंटर कर सकता है। कैसे? छोटे छोटे स्किल कोर्स चलाए जा रहे हैं भारत सरकार द्वारा, DMLT, एक्सरे, लैब टेक्नीशियन के डिप्लोमा स्किल कोर्स हैं जो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी या कॉलेज या इंस्टीट्यूट से होते हैं। वो स्किल्ड कोर्स हैं वोकेशनल के नाम से, BVOC के नाम से। मैडम बताएंगे कुछ? हाँ, मेडिकल का। इसके अलावा और कोई डाउट है आपको इन जो भी सर ने बताए कोर्सेज?
ओके, लास्ट में मैं दो ही कोर्सेज़ के बारे में बात करने वाली हूँ, एक नॉन मेड के बारे में और एक कॉमर्स वालों के बारे में। जितने भी कॉमर्स वाले हैं उनके लिए आपके पास HR डिपार्टमेंट्स हैं, फाइनेंस में आप कर सकते हो MBA फाइनेंस, ठीक है। आप उसमें जितने भी आपके पास कॉमर्स डिपार्टमेंट में आएंगे उसमें जितने भी कंपनीज़ हैं वो आपको हायर करती हैं, ठीक है। फाइनेंशियल तौर पे भी आपको मैनेजिंग डायरेक्टर्स भी आपको हायर करते हैं, प्लस अकाउंटेंसी के लिए CA के लिए आप उनमें अप्लाई कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि हम आपको ये बता रहे हैं कि अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ये अप्लाई करने का मतलब ये है कि आपका अभी से बेसिक स्टार्ट होता है, बेस बनता है। तो आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, सिर्फ स्टडीज़ से रिलेटेड नहीं होता है, बहुत सारे फील्ड्स होते हैं। आपके पैशंस और हॉबीज़ को लेकर भी आपके पास कैरियर्स हो सकते हैं। लाइक यू कैन गो फॉर फोटोग्राफी ऑल्सो, फोटोग्राफी में भी जा सकते हैं आप अपना पैशन बनाने के लिए। वो अलग केस है, आपके हॉबीज़ को लेकर पैशन। अब दो चीज़ें हैं हमारे पास, एक तो होता है कि HR डिपार्टमेंट हो गया, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया। इन दोनों का जो डिमांड है वो आज के टाइम में बहुत है। नेक्स्ट हमारे पास पैसिव इनकम जनरेट करने का भी आजकल न्यू चीज़ें चली है, उसमें भी आप अपना कैरियर चूज़ कर सकते हो। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, अगर आप नॉन मेडिकल में से हैं तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो, बिकॉज आजकल सॉफ्टवेयर के ऊपर ज़्यादा काम होता है। मैकेनिकल इंजीनियर्स आर रिक्वायर्ड। मैकेनिकल इंजीनियर्स किसके लिए होते हैं? जो भी आपके पास मशीन्स वगैरह हैं, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है, आप उनको ज्वाइन इन कर सकते हो थ्रू मैकेनिकल इंजीनियरिंग। क्लियर है? नेक्स्ट आपके पास आता है सिविल इंजीनियरिंग। उसमें जितने भी आपके पास ये रोड्स कंस्ट्रक्शन होते हैं, ब्रिजेस वगैरह बनते हैं, उनको लेकर आप वो सारी चीज़ों में आप गवर्नमेंट सेक्टर्स में जा सकते हैं और उनमें एनरोल होकर आप ये काम भी कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपके पास सारे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सारी चीज़ें आती है, जैसे कि आपके पास सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आप कंप्यूटर से जितने भी आप कोर्सेज कर सकते हो वो सारे आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आ जाते हैं। IT सेक्टर जो है वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आता है। C+ लैंग्वेजेस आपके पास बहुत सारी हैं जो आप कर सकते हो। ये सारे के सारे नॉन मेडिकल के कोर्सेज हैं। तो एक तरह से नॉन मेडिकल के बच्चे जिन्होंने PCM लिया है, यानी कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, ये वाले बच्चे जो हैं एज अ ट्यूटर भी किसी कॉलेजेस में लग सकते हैं। यानी कि आप केमिस्ट्री MSc केमिस्ट्री परस्यू कर सकते हो, MSc आप फिज़िक्स में परस्यू कर सकते हो और MSc मैथमेटिक्स भी परस्यू कर सकते हो। उसके बाद आपके पास B.Ed कोर्सेज है जिसमें आप टीचिंग लाइन में जा सकते हो, राइट। इसके अलावा जो आपके पास केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। BSc केमिस्ट्री, MSc केमिस्ट्री की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। किनमें? केमिकल इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में, और जितने भी साइंटिस्ट वाले पोस्ट हैं उनमें इनकी ज़रूरत रहती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास मैथ्स। मैथ्स के लिए आपको पता ही है, मैथ्स सबको चाहिए। मैथ्स के लिए आप बायोस्टैटिस्टिक्स भी ऑप्ट कर सकते हैं। बायोस्टैटिशियंस जो होते हैं वो स्टैटिक्स, जितने भी हमारे पास पाई चार्ट्स वगैरह बनते हैं वो बायो के अकॉर्डिंगली जितना भी सर्वेज वगैरह हैं उनको करने में क्षमता रखते हैं। आप इन्वायरमेंटल साइंसेस भी ऑप्ट कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल साइंसेस कौन से होते हैं? जो कि इकोसिस्टम से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। इनके लिए भी आपके पास बहुत सारे कोर्सेज हैं इकोसिस्टम से रिलेटेड, जैसे कि अर्थक्वेक्स का प्रेडिक्शन करना, जैसे अर्थक्वेक्स आते हैं इनका प्रेडिक्शन करना, वेदर फोरकास्टिंग करना, ठीक है। ये सारे के सारे आपके पास ओपन है फील्ड्स। ये सारे साइंस में भी आ सकते हैं और बाकी छोटे छोटे डिप्लोमास को ऑप्ट करके आप इनमें भी एंटर कर सकते हो। क्लियर है सबको? और कोई डाउट है यहाँ पर? ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस हम बहुत ज़्यादा समय ले चुके हैं आपका। हमारे पास इतने सारे कोर्सेज हैं और इतने सारे फील्ड्स ओपन हैं कि आप अपनी कैरियर काउंसलिंग हमारे पास जब मर्जी आके करवा सकते हो। अगर पर्सनली भी आप मिलना चाहो आप हमें मिल सकते हो, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। क्लियर है? आप अपने पैशन को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, जो आपका इंटरेस्ट है वो लेकर, अगर आप किसी चीज़ को फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट होने चाहते हो और आप चाहते हो कि हम इसमें ऑप्ट करें या ना करें, आप वो भी हमसे जान सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया था, फोटोग्राफी आप कर सकते हो। पेंटिंग में कई लोग जाते हैं, कईयों की पेंटिंग्स इतनी ज़्यादा बिकती हैं, राइट। ये चीज़ें जो हैं ये आपके पैशन के ऊपर डिपेंडेंट है। अदरवाइज आपके पास बहुत सारे फील्ड्स हैं, आप ऑप्ट कर सकते हो। एनी अदर डाउट? किसी को और कोई डाउट?
ठीक है, 2 तरीके हैं इनकम जनरेट करने के। मेन मकसद क्या होता है कि हम आज का जो आपका सेशन है उसमें आपको यही होने वाला है कि आज का जो 10 मिनट्स की जो काउंसलिंग होगी, यानी कि जितना भी आप अपने दिमाग पे फोकस करके अगर आप सोचो, ये कुछ काउंसलिंग आपका जो कैरियर अब आप डिसाइड करने वाले हो, ये आपकी पूरी ज़िंदगी बनाने वाला है। तो आपकी पूरी लाइफ जो है वो इस कैरियर को सिलेक्ट करने के ऊपर डिपेंड करती है कि आप कौन सी लाइन चुन रहे हो। ठीक है, तो आपने बहुत सोच समझ के कैरियर चुनना है जो आपको अच्छा लगे कि हाँ हम इसमें कर सकते हैं, उसमें आप 100% दे सकते हो, आप दो। नेक्स्ट 2 चीज़ें हैं कैरियर चूज़ करने का। सबसे पहला मेन मोटिव है इनकम जनरेट होना चाहिए। तो बेटा हमेशा 2 तरीक़ों से आप इनकम जनरेट करो। एक तो एक्टिव इनकम होती है, एक पैसिव इनकम होती है। अगर आपको लगता है कि आप अपने फील्ड जो आपने चुना है उसके साथ साथ कुछ इनकम अर्न कर सकते हो, तो आप अपने पैशन को भी परस्यू कर पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। आया समझ? किसी को कोई डाउट्स यहाँ पे? अगर और कुछ जानना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, ठीक है, थैंक यू मैडम। थैंक यू।